कि कोविड में जितने भी सेंट्रलाइज बैंक थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए, जिसकी वजह से जितने भी बड़े बिजनेसेस थे उन्होंने दबा के पैसा उठाया बैंकों से और बिजनेस में लगाना चालू किया। अब जैसे ही जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो इन्फ्लेशन ऊपर जाता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो एकमात्र तरीका रिजर्व बैंक के पास होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। तो दे प्ले विद द इंटरेस्ट रेट। अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए तो लोगों की ईएमआई कम हो गई। न्यूजीलैंड का जो इंडिया से जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होती हैं वो 10,000 है। तो बहुत बैलेंस है। बहुत बैलेंस है। यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो सब्जेक्टेड टू इमिग्रेशन ऑफिसर है। इफ दे फील कि इस बंदे का पे कनाडा लेना, में तो होता नहीं है। यहाँ कनाडा में नहीं होता, बट यहाँ पे सब्जेक्टेड टू वीजा ऑफिसर है कि अगर उसको लगेगा कि भाई इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये कहाँ से पैसे आए हैं। Hi, hello everyone. This is Chakit from VSC Global Education. Today I have got Mr. Jitendra Grover with me. He has a lot of knowledge regarding Canada study visa. So we are going to ask insight about the Canada. He has been to Canada, lived there, worked there, and he's managing immigration company himself. So he would be able to share his insight. And welcome to VSC. Thank you so much, Chakit, for having me. And we are going to discuss, of course, we are going to compare two spouse-friendly countries, New Zealand and Canada, majorly. And we are going to share our insights on both the countries. So, Perfect. uh, Just a disclaimer that spouse visa in New Zealand is filed within LIA, which is Licensed Immigration Advisor. So we are a licensed immigration advisor company. So whenever you have a question with spouse visa, I'm gonna fix your meeting with the LIA so that they can guide you as per your relationship. And yeah, that's it. Let's begin. yeah, sure. परफेक्ट। सो जितेंद्र जी, कैसा है अभी कनाडा का माहौल? कैसा चल रहा है कनाडा का स्टडी वीज़ा? क्या नए चेंजेस हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें लोगों को कनाडा जरूर कंसिडर करना चाहिए फॉर देयर स्टडी वीज़ा? So, as mentioned, अगर स्पाउस के साथ जाना है, so there are only few countries जहाँ पे स्पाउस के साथ जा सकते हैं. Canada is one of them. New Zealand is there. Finland or few other European countries, but Canada is one of the major players so जहाँ पे स्पाउस के साथ जा सकते हैं. जी। So that's why Canada is one of the most prominent destinations. And अगर funds पुराने नहीं हैं, हम्म। so Canada में चल जाता है. So हम्म। that's why Canada is prominent. तो परफेक्ट। इसलिए कंसिडर करना चाहिए. ट्रेंड वाइज नॉट सो ग्रेट क्योंकि इलेक्शंस थे एंड पब्लिक का मूड इट वाज नॉट इन फेवर ऑफ इमिग्रेशन इन कनाडा. या। सो फोर्सफुली इवन दो लिबरल्स वर इन फेवर ऑफ और आर इन फेवर ऑफ इमिग्रेशन, हाँ। स्टिल दे हैड टू डू फ्यू थिंग्स जो कि इमिग्रेशन के अगेंस्ट थी. हम्म। So they had to stop immigration. They had put brakes on immigration. Spouse visa पे भी हम्म। refusals, random refusals were there. हम्म। So refusal rate has gone up in last few months. हम्म। Election से just पहले. जी। Now we are assuming कि अभी election हो गया, they have won again, हम्म। and they are in favor of immigration overall. जी। तो they openly say it कि चाहिए immigrants तो कनाडा को चाहिए ही है. हम्म। So hopefully things are going to get far better in future and refusal rate will go down and visa acceptance rate will go up. Still there is possibility of getting spouse visa. हम्म। Condition is there कि master degree 2 year हाँ। की लेके जाना है, हाँ। उसके साथ spouse visa allowed है. So possibility is there, it's not a problem. व्हाट अबाउट बैचलर स्टूडेंट, उसमें स्पाउस वीज़ा होता है? कुछ बैचलर डिग्रीज है, बीएड है, हाँ। बीएससी है, हाँ। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी हाँ। नर्सिंग करने को जाता है. हाँ। सो फ्यू बैचलर डिग्रीज आर आल्सो देयर. बीएड सबके साथ चल जाती है and with that spouse visa is possible, but B.Ed again, if you are going for 3 year of degree or 4 year of degree, usually it is 4 year, कम से कम 3 साल की डिग्री तो लेके जाना पड़ेगा. 3 बिल्कुल। साल की फीस पे करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. हाँ। सो यूजुअली ओवरऑल पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से गोइंग फॉर ए मास्टर्स इज मोर ल्यूक्रेटिव ऑप्शन, करेक्ट। जिसके अंदर 16 मंथ में मास्टर्स हो जाती है हाँ। एंड 2 साल की फीस पे करनी है एंड उसके बाद 3 साल का ही वर्क परमिट है. हम्म। तो 3 या 4 साल की बैचलर्स के साथ फीस पे करने की जरूरत नहीं रहती. सो इसीलिए यूजुअली लोग मास्टर्स के साथ ही प्रोसीड करते हैं. परफेक्ट। तो जब मास्टर्स में बच्चा अप्लाई करता है तो उसको पहले साल में पहले साल की फीस देनी है और जीआईसी पे करना है, और वो किसी भी सोर्स से हो सकता है, राइट? या सो फंड्स अगर बात करते हैं तो अगेन फीस मोर और लेस सेम जब। सब कंट्रीज में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. हाँ। सो फर्स्ट ईयर की फी उनको पे करनी होती है, कहीं से भी आए, हम्म। नए फंड्स पुराने फंड कोई मतलब नहीं है, किसने दिए मतलब नहीं है, हम्म। फीस यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जानी चाहिए, दैट्स जी। इट. एंड जीआईसी भी कहाँ से आई, किसने दी? जीआईसी इज लिविंग एक्सपेंसेस. इफ समवन डजंट नो या। व्हाट जीआईसी इज, दोज आर लिविंग एक्सपेंसेस, बट इंडिया में शो नहीं कर रहे हैं.
वी आर सेंडिंग देम टू कनाडा। या वहां पे ब्लॉक्ड अकाउंट जैसे होता है जर्मनी में या बाकी कुछ कंट्रीज में होता है, तो न्यूजीलैंड रादर में देन एफटीएस बोलते हैं इसको। FTS बोलते जी। हैं। सो GIC इट गोज टू कनाडा, कैनेडियन अकाउंट में जाती है। एंड नाउ देयर इज वन फैसिलिटी इन दैट इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम ICICI बैंक, हाँ, तो इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा यू कैन विड्रॉ द एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट पहले 8,000 कुछ होता पहले था। हाँ, वो था कि बाउंडेड रहता था। हाँ, $21,000 के अंदर भी अभी भी हाँ, CIBC बैंक से करते हैं हाँ, या RBC बैंक से करते हैं, स्टिल इट इज बाउंडेड हाँ, कि आप $8-9,000 निकाल सकते हैं और हाँ, बाकी आपका $12,000 to $14,000 बैंक के पास रहेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। इंस्टॉलमेंट में वापस आएगा। हाँ, तो $21,000 की GIC रहती है। बट ICICI बैंक गिव्स यू फैसिलिटी कि क्योंकि SDS खत्म हो गया, हाँ, पहले SDS कैटेगरी वाज देयर, बिल्कुल सो बिल्कुल। अभी वो कंडीशन खत्म हो गई है। हम्म। सो यू कैन विड्रॉ द एंटायर अमाउंट एज सून एज यू लैंड इन कनाडा। तो परफेक्ट। ये एक फैसिलिटी हो गई है इसके जी। अंदर। सो लिविंग एक्सपेंसेस है बट कनाडा में है। हम्म। रिमेनिंग अमाउंट जो स्पाउस के लिए दिखानी होती है, हम्म। तो सिर्फ स्पाउस है तो $5,000 और दिखाने होते हैं। हम्म। सो $21,000 लिविंग एक्सपेंसेस आर देयर फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, हम्म। $5,000 फॉर स्पाउस, $26,000 टोटल हो गए। हम्म। तो अगर इंडिया में पुराने फंड्स नहीं है हाँ, स्पाउस वाले, हाँ। तो उसको भी कनाडा GIC के साथ भेज दो, दैट इज बेटर। अमेजिंग। हाँ, और उसके बाद एक बच्चा है तो हाँ। $32,000 टोटल चाहिए। हम्म। 6,000 फॉर फर्स्ट किड, हाँ, 7,000 फॉर सेकंड किड। हाँ, तो फॉर ए फैमिली ऑफ 4 टोटल लिविंग एक्सपेंसेस $39,000 चाहिए। हाँ, एंड अगर इंडिया में पुराने फंड्स नहीं है, हाँ, तो कुछ लोग FD कर देते हैं इंडिया में, हाँ, क्योंकि वो स्टेटमेंट में वो क्लियरली दिखता है कि अभी अभी डिपॉजिट कराया, हाँ, कहाँ से आए, बिल्कुल। तो आंसर नहीं होता। हाँ, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज, कि एफडी फर्स्ट करा दो। ऑप्शन इज अभी अकाउंट में डालो, स्टेटमेंट दे दो, हाँ, तो मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, उससे अच्छा है FD करा दो, हाँ। कि FD के अंदर कम से कम ये सोर्स नहीं क्लियर बताना पड़ेगा कि भाई क्लियर पैसा कहाँ है, से आया। है तो नए फंड में हाँ, भी क्लियर है कि FD 10 दिन पहले हुई है, हाँ, लेकिन कम से कम ग्रे एरिया रह गया कि ये अभी आए, कहाँ से आए, कुछ नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। स्टिल वी हैव गॉट वीजास इन दैट। हाँ, उससे भी बेटर है कि कनाडा ही भेज दो, सीधा जीआईसी में डाल दो। GIC में डालो, जी। सारे पैसे की GIC करो, कनाडा भेज दो, दैट्स द हाँ, बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। तो बढ़िया। दैट्स हाउ इट। तो फंड्स अगर पुराने, नहीं है तो और सब स्पाउस वीजा पे जाना है तो स्पाउस, कनाडा जाओ। और यूजुअली पीपल डू नॉट रेकमेंड या कंसीडर हम्म। कंसल्टेंट्स। हम्म। जब मैं अपना केस करता था तब से लेके अब तक हाँ, मेरी तो सारी स्टोरी यही है, स्पाउस के अराउंड ही है। जी, सीखा भी मैंने स्पाउस वीजा पहले जी, खुद के लिए ही था, जी, उसी से फिर वीडियोस बनानी स्टार्ट की। जी। सो यूजुअली कंसल्टेंट्स डू नॉट रेकमेंड टू अप्लाई विद स्पाउस। हम्म। मैं बड़े फोर्सफुली बोलता, पहले कम फोर्स से बोलता था, अब और ज्यादा फोर्सफुली बोलता हूँ कि स्पाउस के साथ ही लगाओ। हाँ, वीजा नहीं आता तो ना आए, हाँ, पहले अप्लाई करो फिर स्पाउस के साथ करो। हाँ, क्योंकि कनाडा के अंदर रूल इतने फ्रिक्वेंटली चेंज हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, हाँ, स्पेशली रिलेटेड टू स्पाउस। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि मान लो किसी स्टूडेंट का वीजा ले लिया, हाँ, कि स्टूडेंट स्पाउस का वीजा आएगा ले, नहीं आएगा। उसके बाद रूल चेंज हो गया बीच में, एंड क्लाइंट विल बी बिहाइंड मी कि ये हाँ, भाई तुमने मेरी वाइफ को भेज दिया, हस्बैंड को भेज दिया, एंड मेरा स्पाउस वीजा लेके दो। बिल्कुल। तो वीजा नहीं आना इज स्टिल फाइन, हम्म। सेपरेशन इज फार मोर डिफिकल्ट टू हैंडल। करेक्ट। तो साथ में आए या साथ में ना आए, आई स्टिल रेकमेंड अप्लाई विद स्पाउस। मैं सबको यही बोलता हूँ, पहले कम बोलता था जब रूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जी, पहले भी मैं रेकमेंड करता था, जी, लेकिन फोर्स नहीं करता था। अब जी, मैं फोर्स करता हूँ कि मैरिड हो साथ में लगाओ, नहीं आता नहीं है, जी। दूसरे अटेम्प्ट में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा। हम्म। कनाडा के अंदर यूजुअली पीपल आर अफ्रेड ऑफ रिफ्यूजल्स, आई एम हाँ, नॉट अफ्रेड ऑफ रिफ्यूजल्स, हाँ, क्योंकि कनाडा में रैंडम रिफ्यूजल्स आते हैं, हाँ। कुछ चेक नहीं किया, सिर्फ टारगेट बेस्ड है उनका, रिफ्यूजल देना है तो देना है, बात बिल्कुल, खत्म। तो उसमें क्या लिखा फाइल में, अच्छा था, बुरा था, सफिशिएंट था, नहीं था, देना है तो देना है। हम्म, इंडिया से तो ये होता है। हम्म, तो इवन इफ देर इज 1 रिफ्यूजल, 2 रिफ्यूजल, 3 4 5, रीअप्लाई करो, वीजा ले लो। हम्म। मैंने कनाडा का 11 रिफ्यूजल्स के बाद भी वीजा लिया है। बहुत बढ़िया। मुझे इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता हाँ, कि कितने रिफ्यूजल्स हैं। हाँ। मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि कंसीडर इट, रिफ्यूजल आता है विड्रॉ मत करो, हम्म, रिफ्यूजल आता है तो हम्म, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह समझो कि आपके जाने की इन्वेस्टमेंट है, हाँ, बट इट्स वर्थ। क्योंकि हम्म, अगर आप स्पाउस के साथ ट्रैवल करते हो, देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स। हाँ, वो न्यूजीलैंड जाते हैं वहां भी है, कहीं भी जाते हो, बिल्कुल। स्पाउस साथ में है, एक इमोशनल बेनिफिट रहता है। हाँ, जाते ही वर्क परमिट मिलता है तो फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया, हाँ, कि आप जाते ही काम कर सकते हो। हाँ। जाते ही। हम्म। PR का डायरेक्ट बेनिफिट है हम्म। कि आप स्पाउस PR के लिए प्राइमरी एप्लीकेंट बन सकता है। तो ये हाँ, भी एक मिसकंसेप्शन रहता है कि स्पाउस प्राइमरी एप्लीकेंट बन पाएगा या नहीं बन हाँ। पाएगा। तो सिर्फ स्टूडेंट PR नहीं ले सकता, स्पाउस भी स्पाउस नहीं। एक्सपीरियंस ले उसी हाँ, पीरियड में, 1 साल का एक्सपीरियंस लेके स्पाउस कैन बिकम एलिजिबल फॉर PR। करेक्ट। तो बैकअप ऑप्शन बन गया आपका PR के लिए। सेम न्यूजीलैंड में भी है। सो हाँ। दिस इज ग्रेट थिंग। तो हम्म। जाने के मेजर बेनिफिट्स हैं, हाँ। और साथ जाना कनाडा में हम्म। जहाँ रूल्स ऐसे फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। हम्म।
पहले कोई भी किसी भी पीजी डिप्लोमा के साथ भी स्पाउस था, यूजी करेक्ट। डिप्लोमा के साथ सबके साथ स्पाउस था। हाँ, फिर बंद करके सिर्फ मास्टर्स के मास्टर्स साथ कर। किया। हम्म। फिर मास्टर्स भी 2 ईयर वाली कर दी। हाँ, पता चला 3 महीने बाद रूल चेंज हो गया, कि अब पीएचडी पे ही अब होगा। पीएचडी के साथ होगा या होगा ही नहीं, हाँ, तो वी डोंट नो। हाँ, तो जब रूल इतने चेंज हो रहे हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। सेपरेशन होना बड़ा ही पेनफुल होता है, मेरे साथ हुआ है। हाँ, सो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इट इज क्वाइट पेनफुल। हाँ, एंड स्पेशली अगर बच्चे हैं, हाँ, हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर भी चलो हाँ, मैनेजेबल। मैनेज हो जाता है। हाँ। हम इमोशनली चलो हम्म, मैनेज कर लेते हैं। बच्चे होते हैं तो इट्स बहुत रियली मुश्किल पेनफुल। है। हाँ, तो आई नो। इट शुड नॉट हैपन। हम्म। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन। परफेक्ट। सो ट्रेंड कैन बी फार बेटर इन फ्यूचर, हाँ, क्योंकि इमिग्रेंट्स तो कनाडा को चाहिए। मुझे लगता है अभी लोएस्ट जो है वो हिट हो चुका है, और इससे नीचे अभी क्या ही जाएगा। हाँ, एंड थिंग्स आर आल्सो गेटिंग बेटर, क्योंकि हाँ, एलएमआईए बंद हो गए। बहुत बिल्कुल। कम 10 12 15% एलएमआईए अप्रूव हो रहे हैं हाँ। टोटल, जितने पहले होते थे। जी। तो एकदम ब्रेक लगी है उसके ऊपर। हम्म। तो वो जो पहुंच जाते थे बस एलएमआईए लिए, हम्म। विजिटर वीजा पे पहुंचे, विजिटर वीजा ऑलमोस्ट ड्राइड आउट। हम्म। पेरेंट्स के लग रहे हैं, या क्लोज रिलेटिव्स हैं, या जिनकी एज ज्यादा है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, सिर्फ उनके अच्छे केसेस के लग रहे हैं। हाँ, जो बाकी जना खना लगा रहा था और लग रहे थे, वो सब बंद हो गए। हाँ। तो वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम्म। एलएमआईए नहीं ले पा रहे, वो खत्म हो गया। हम्म। उसके बाद मतलब अब केसेस जो मतलब नंबर पूरी जो गंदगी थी वो सब आउट हो सफाई गई। हाँ, सफाई सफाई हो चुकी है। सफाई हो हाँ, चुकी है। बहुत तो बढ़िया। 1 2 साल में दिस इज द राइट टाइम। हाँ, एंड पीपल आस्क मी कि इज इट द राइट टाइम। हाँ, आई गिव वन सिंपल एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ। बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। या, पीपल आर फेयरफुल, या। दिस इज द राइट टाइम टू बी ग्रीडी। जो इस परफेक्ट। टाइम जाएगा, हम्म। उसकी पीआर के अंदर द पर्सन विल फेस लिस्ट डिफिकल्टीज। हम्म। जो लोग मेरे फ्रेंड्स थे, जो हमने पहले केसेस किए थे, करण तमन्ना मेरी बैचमेट जी, क्लासमेट्स थे बीटेक से, जी। उनकी पीआर में उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कोविड में गए थे जब कोई नहीं जा रहा था। हाँ, 2020 कोविड के अंदर उनकी फाइल लगी थी हाँ, सितंबर में। हाँ, आधी से ज्यादा स्टडी उनकी यहीं हो गई थी, हाँ, और वहां जाके एक आधा सेमेस्टर उन्होंने कंप्लीट किया। हाँ। एंड दे हैव गॉट देयर पीआरस। हम्म। सो उन्होंने प्रॉब्लम कम फेस की। जब पूरा बूम आ चुका था, जिसने ट्रेंड देखा सब कनाडा जा रहे हैं हाँ, तो 2020, मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। तो हाँ, जब तक ये पब्लिश होकर ट्रेंड बन चुका होता है, हाँ। पब्लिश हो चुका होता है, तब तब तक तक वो देर हो वो चुकी होती है। वो स्टॉक एक्सपोज हो चुका है जो बढ़ने वाला बस, है। तो जिसकी न्यूज पब्लिश हो गई, हाँ, वो स्टॉक चल चुका है, हाँ, अपना बूम देख चुका है, बिल्कुल। अब नीचे जाने वाला है। हाँ, तो जब बहुत कम लोग जा रहे हैं, हाँ, कंट्री भी मुश्किल से बुला रही है, हाँ। वीजा मुश्किल से लग रहा है, हम्म। वही सही टाइम है कंट्री में जाने का। हम्म। और यही टाइम होता है टू बी ग्रीडी, इस हम्म। टाइम पे जाना चाहिए। बिल्कुल। और व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी, जैसे 2023 में हाँ, था, बी फियरफुल दैट टाइम। ये कभी फटेगा तो फटा। फट गया, कनाडा वाला फटा, फट गया। 1 मिलियन लोग पहुंचे 2023 में, और फिर वो फटना ही था, वो फट हम्म। गया। सो दिस इज द राइट टाइम टू गो। अभी मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैं उनसे बात कर रहा था। उनकी लास्ट नाइट अपने एक फ्रेंड से बात हो रही थी। तो उसने भी यही बताया कि जो बच्चे वहाँ पे गए थे, अभी स्टॉप लग गया है। तो हाउसिंग प्राइस भी कम हो गए हैं, रेंट भी कम हो गया है। तो क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ओवर द रूफ चली गई थी कि भाई लोग घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जॉब्स नहीं है। बट वो ट्रेंड धीरे धीरे No, अभी चेंज हो रहा है। it is reversing. I was also following videos on real estate. हाँ। Grow with Nav, there is one channel ओके। I follow him. हाँ, हाँ, So he has recently posted हाँ। the same thing. अच्छा। The prices of homes are going down हम्म। in Ontario. So this is kind of a सेम इज good news. हैपनिंग विद न्यूजीलैंड ऑल्सो। अभी जो न्यूजीलैंड की रियल एस्टेट मार्केट है वो 20% डाउन है। तो घर सस्ते हो गए, रेंट सस्ते हो गए हैं। तो और उससे इंटरेस्ट रेट का, ये सारा मैटर इंटरेस्ट रेट का है। कोविड में क्या हुआ कि कोविड में जितने भी सेंट्रलाइज बैंक थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए, जिसकी वजह से जितने भी बड़े बिजनेसेस थे उन्होंने दबा के पैसा उठाया बैंकों से और बिजनेसेस में लगाना चालू किया। अब जैसे ही जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो इन्फ्लेशन ऊपर जाता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो एकमात्र तरीका रिजर्व बैंक के पास होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। तो दे प्ले विद द इंटरेस्ट रेट। अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए तो लोगों की ईएमआई कम हो गई। ईएमआई कम होगी तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा मार्केट में घूमेगा तो ज़्यादा जॉब्स बनेंगी। सो ये पूरा ट्रेंड है एंड दिस इज वर्ल्ड वाइड, दिस इज नॉट जस्ट कनाडा और न्यूजीलैंड ये और कनाडा ऑस्ट्रेलिया। ने भी किया था। यही सेम सिनेरियो अभी चल रहा है। परफेक्ट। ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको लगता है जिनमें जाने में कनाडा में सबसे ज़्यादा फायदा है? मैं यूजुअली अभी जो रेकमेंड कर रहा हूँ, हाँ। कि अगर किसी को ओंटारियो की हम्म। पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री मिल जाती है, हाँ। उसके जैसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो 2 प्रोग्राम जो है, जो आंख बंद करके लिए जा सकते हैं। हाँ, एक तो ओंटारियो, सबको लगता है कि इट इज मोस्ट डिफिकल्ट प्रोविंस टू गेट पीएनपी, हाँ, बट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ऑल द ओपिनियंस, हाँ। सिर्फ ओंटारियो ही एक ऐसा प्रोविंस है जिसने कभी पीएनपी के इनविटेशन बंद ही नहीं किए। अच्छा। ओनली प्रोविंस। हाँ। इसके अलावा कोई प्रोविंस नहीं है जिसने या तो बहुत
सडन ब्रेक्स नहीं लगाई, बिल्कुल बंद नहीं किया, कोई प्रोविंस नहीं है, हर प्रोग्राम में बंद है। सिर्फ ओंटारियो ही एक ऐसा प्रोविंस है जहां पीएनपी इन्विटेशन कभी बंद नहीं हुए। दे हैव 45% सीट्स हाँ कोटा, सबसे बड़ा कोटा है उनके पास, हाँ जितनी पॉपुलेशन उतना कोटा है, हाँ सबसे बड़ा कोटा उनके पास है। हाँ। पहला स्पेशल टाइप के प्रोग्राम्स है जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री के प्रोग्राम्स है। अच्छा। देर इज वन मोर प्रोग्राम आरसीआईपी जो हम्म 5 साल के लिए अभी अनाउंस हुआ है। हाँ। उसके अंदर भी अराउंड 4,000 सीट्स आर देयर इन आरसीआईपी कम्युनिटीज, हम्म कि अगर कोई वहां पे जॉब करता है हम्म या फिर वहां से स्टडी कंप्लीट करता है तो 4,000 सीट्स वहां आरसीआईपी में भी है। हम्म तो देयर इज वन ओवरलैप एरिया इन दिस, हम्म। जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी जो ओंटारियो के अंदर हाँ आरसीआईपी में भी आती है हाँ। और ओंटारियो मास्टर ग्रेजुएट स्ट्रीम में भी आती है, अच्छा। और दोनों प्रोग्राम सेम है। हाँ जैसे ही आप मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हो विदाउट इवन हैविंग योर एक्सपीरियंस, हाँ। यू कैन अप्लाई फॉर योर पीआर। अच्छा। तो कुछ ओवरलैपिंग यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर, हाँ। जिसको मैं कहता हूँ कि ये गोल्ड गोल्डन। माइन है, गोल्ड माइन है। हाँ इसके अंदर वैसे तो ओंटारियो की कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी ले लो, हाँ। ओंटारियो की कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कंप्लीट कर लो, इट इज अ श्योर शॉट पीआर। अच्छा। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंदर बहुत रेयरली लोग फाइल लगा पाते हैं, हाँ ओंटारियो में हाँ लगाते ही बहुत कम है, हाँ। बहुत लोगों को पता ही नहीं है। जी। बट दैट इज द बेस्ट वे टू गेट पीआर, हम्म दैट इज वन। हम्म। तो या तो किसी भी ओंटारियो की पब्लिक यूनिवर्सिटी, शायद कोई 20, भी मास्टर्स कर लो। कोई मास्टर्स करो, अच्छा। कोई मास्टर्स अच्छा। ओंटारियो किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। बट अच्छा। एक ही रिक्वायरमेंट है, हाँ। 4 साल की डिग्री मांगते हैं पब्लिक इंडिया यूनिवर्सिटी में 4 साल की पढ़ाई होनी चाहिए या कहीं कनाडा से से भी भी की है। 4 साल की पढ़ाई होनी चाहिए? लेकिन 4 साल की डिग्रीज यूजली इंडिया के अंदर सिर्फ दस बीटेक है। परसेंट हाँ। लोग भी नहीं करते होंगे। हम्म। टोटल मुझे लगता है कि अगर 2-3 करोड़ बच्चे टोटल पास आउट होते हैं बैचलर्स में, हाँ। तो 10 लाख के आसपास इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे जो 4 साल की डिग्री के साथ, बिल्कुल। तो 10% से भी बहुत कम कह सकते हो। सो ये डायरेक्ट जा सकते हैं। हम्म। बट अलगोमा अभी लेके आई है, अलगोमा यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग 3 ईयर ऑफ बैचलर्स इन हाँ। वन प्रोग्राम, अच्छा। अगर नैक ए ग्रेड या उससे अबव यूनिवर्सिटी से बैचलर्स है अच्छा। तो दे कैन गिव एडमिशन। तो एक ऑप्शन है हाँ भी जिस पे जा सकते हैं 3 साल की डिग्री के साथ भी। हाँ। सो दैट इज पॉसिबल। बट एनी वे, एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी इन ओंटारियो, श्योर शॉट पीआर। इसमें अगर किसी ने लेट्स सपोज पहले इंडिया में 3 साल की बैचलर्स की, 1 साल का डिप्लोमा किया कनाडा से, और उसके बाद वो 2 साल की इट कैन बी ट्राइड, मास्टर्स कर इट कर ले कैन तो? बी ट्राइड। हम्म। लेकिन फिर वही बच्चों को रहता है, 1 साल की स्टडी पहले कर ली हमने कनाडा में हाँ जिसको कंसिडर करने के लिए, हाँ। 2 साल की स्टडी और करूँ, बहुत कम बच्चे रेडी होंगे। बट इट्स लेकिन अगर किसी ने इंडिया में पीजीडीएम किया हुआ है या मास्टर्स की हुई है, उसके वो बाद वो यूजली फिर जा। यूजली कंसिडर नहीं होता। अच्छा, वो बैचलर्स ही उतनी। बैचलर्स चाहते ओके। हैं, या कनाडा की स्टडी वो भी रिक्वेस्ट बेसिस पे पहले प्री अप्रूवल लेके फिर उसको ट्राई ओके। कर सकते हैं। अच्छा। बट स्ट्रेट 4 साल की डिग्री है तो फिर तो इट्स ऑल वर्थ इट परफेक्ट, है। वर्थ इट है। हाँ तो वो तो श्योर शॉट पीआर है। आरसीआईपी के अंदर भी 4,000 के अराउंड सीट्स हैं हाँ आरसीआईपी की, हाँ। 14 कम्युनिटीज हैं। अब 14 कम्युनिटीज के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि 5-7 हज़ार स्टूडेंट जो होंगे टोटल, हम्म सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं मिला लूँ हम्म करीब, मुझे लगता है कि 20 odd colleges universities must be there in all these communities। हम्म अब इसमें जितने बच्चे पास आउट हो रहे हम्म हैं, इन बच्चों का भी यही है कि हम्म इफ दे हैव कंप्लीटेड ईदर 2 ईयर ऑफ स्टडी, हम्म कोई भी, हम्म या मास्टर, चाहे 1 ईयर मास्टर या 2 ईयर मास्टर्स, हम्म। दे विल गेट श्योर शॉट पीआर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी। सिर्फ आरसीआईपी में। आरसीआई, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। हाँ। तो अगर इसका जो ओवरलैप एरिया ये है हम्म कि पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियोस हम्म एंड कमिंग अंडर आरसीआईपी, हम्म। तो तो ऐसे आप। 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं, हाँ अल्गोमा, हाँ लोरेंशियन, हाँ लेकहेड यूनिवर्सिटी, हाँ निपिसिंग यूनिवर्सिटी। हाँ तो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं हाँ। जो कि ट्रेंट आती है इसमें? ट्रेंट नहीं आती, अच्छा। ट्रेंट उसमें आएगी ओंटारियो मास्टर ग्रेजुएट अच्छा। स्ट्रीम में, ओके ओके। बट इसमें नहीं आएगी। हाँ। तो ये अगर अल्गोमा मिल जाती है, हम्म लोरेंशियन मिल जाती है, हम्म। तो आंख बंद करके ले लो, स्टडी कंप्लीट होते ही इट इज गोइंग टू बी पीआर। हाँ चाहे ओंटारियो पीएनपी ले लो, हाँ चाहे आरसीआईपी में ले लो, चाहे दोनों में डाल दो, हाँ। किसी में तो हो जाएगी, 100% श्योर शॉट है, रुकेगी नहीं पीआर। बस 4 साल की वो चाहिए, 4 साल की बैचलर चाहिए। या फिर 3 साल की भी अगर एल्गोमा जा रहे हो तो वो ले अल्गोमा लो। है तो हाँ 3 साल भी एक्सेप्ट हो सकती है उसकी। हाँ। उसमें परसेंटेज का भी है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? परसेंटेज यूजली 60% से ऊपर होनी चाहिए इन हाँ। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, 65 to 70% डिमांड करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम्स। ओके सो परफेक्ट। 65% चाहिए, तो ये तो डिमांड है उसमें। बहुत बढ़िया। अभी इनमें कुछ सैलरी का भी क्राइटेरिया होता है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, सिर्फ जॉब जॉब ऑफर की होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नहीं, अच्छा। जॉब इज नॉट ए रिक्वायरमेंट। ओ, जॉब इज नॉट द रिक्वायरमेंट, सीधा मास्टर्स करो। स्टडी कंप्लीट करो बस अपने, अच्छा। तो वो तो कोई इशू पढ़ने लिखने वाले बच्चे चाहिए उनको। नहीं। नाउ शेयर विद मी, न्यूजीलैंड में क्या कंडीशंस है, न्यूजीलैंड में वीजा एक्सेप्टेंस रेट कैसा है, एंड ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फॉर कनाडा। परफेक्ट। तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले तो ये है कि वहाँ का एक्सेप्टेंस रेट
इज फॉर इंडिया इट्स अराउंड 50 to 60%। ठीक है। क्योंकि वहाँ की जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो उनके वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ फाइल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसे नहीं चलता, कुछ फर्जी लगा दिया? ना 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 ना, फर्जी का न्यूजीलैंड अच्छा, में कोई स्कोप ही नहीं है, चाहे फंड्स हो चाहे वो एजुकेशन हो गैप चाहे। ले लेते हैं, मतलब गैप गैप तो मतलब ट्रू गैप? ट्रू गैप में 1 साल तक चलता है। एक साथ में। हाँ, 1 साल तक देर इज लाइक यू कैन एक्सप्लेन दैट यू आर प्लानिंग फॉर आईएलटीएस पीटी। थोड़ा ही चलता इतना है, ही है। बाकी तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए। सब्सटेंशियल चाहिए। हम्म, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हो। कुछ एक्सपीरियंस है। हाँ, बट वो 1 डेढ़ साल तक मैनेजेबल है। उससे ऊपर जो बोलते हैं लोग कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे 4 साल, हवा में नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। चाहे उसका एडमिट कार्ड लगा लो आप, कुछ चाहे कुछ भी लगा लो, वो नहीं चलेगा। सो समथिंग गुड शुड बी हाँ, तो कोई भी सैलरी है तो वो अकाउंट में आनी चाहिए आपके। इवन स्पॉन्सर की सैलरी, स्पॉन्सर के वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, स्पॉन्सर के फॉर्म बिजनेस 16, बिजनेस बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग हैज टू बी देयर। तो जो ऐसी फाइल प्रिपेयर कर लेते हैं उनके तो वीज़ा आ जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ वो रैट एक्सपेरिमेंट है बस वो जाना तो नहीं है। न्यूजीलैंड है पर फाइल में दम नहीं है, हाँ, कुछ मिसिंग है। तो वो तो हम पहले ही मना कर देते हैं कि ये नहीं होगा। कितना एक चल जाता है, मतलब मान लो 100 थिंग्स आर रिक्वायर्ड हाँ, आउट ऑफ 100, कि यार थोड़ी सी कमी है, 10% कमी है, तो वो चलती है कमी या? क्या है, वो मैटर ये करती है जैसे। मान लो हाँ एक्सपीरियंस जो है वो बिगिनिंग में कैश में चल रही थी 2 जॉब्स के अंदर, बाद वाली अब वाली जो है वो अकाउंट में आ रही है, चल जाएगी? हाँ, तो इस केस में जो प्रीवियस जॉब्स हैं उसकी आपको सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं होती है, ओके। उसकी बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं होती है। उसमें आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, जब आपने जॉब ज्वाइन करी थी उसका अपॉइंटमेंट लेटर, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिलीविंग लेटर, बट जो करंट जो है उसकी आपको सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट सब उसकी कुछ देना वेटेज ज्यादा है, पड़ेगा। तो वेटेज ये ज़्यादा है। ये थोड़ा सा है जो क्योंकि चल जाएगा। क्योंकि मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब कोई बच्चा है जिसने 2006 में ग्रेजुएशन करी, 2006 में उसकी जो पहली इनिशियल जो जॉब थी वो कैश में थी, ठीक है। बट उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास एक्सपीरियंस लेटर है, बट उसके बाद जितनी भी जॉब करी वो सारी उसके पास सब अकाउंट में सैलरी आई, सब कुछ आया, दैट वुड वर्क। बट कोई बच्चा जो अभी उठ के आ रहा है और वो कह रहा है, क्या कहते हैं, मेरी परसेंटेज भी लो है, मेरे पास फंड्स भी मैंने जैसे तैसे इकट्ठे किए हैं, उसका भी सोर्स नहीं है और सैलरी भी कैश में है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट नो प्रोफाइल है। इसको हम पहले ही मना कर देंगे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं और जाके एक्सपेरिमेंट करा लो। क्योंकि ऐसी प्रोफाइल को इमिग्रेशन तुरंत देखती है कि आपकी फाइल कहाँ से है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से है, आपकी सैलरी अकाउंट में है नहीं है, आपके टैक्स सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा, आपके स्पॉन्सर कहाँ से पैसा कमा रहे हैं। जैसे बैचलर्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे 3 साल के लिविंग और 3 साल के ट्यूशन फीस दिखानी है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। कनाडा में तो 1 साल की फीस और 1 साल के हाँ, लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं तो बस, कनाडा इसलिए ही इतना बल्क जा पाता है ना। न्यूजीलैंड का जो इंडिया से जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होती है वो 10,000 है। तो बहुत बैलेंस है। बहुत बैलेंस है, तो वो लोग ऐसी प्रोफाइल को एंटरटेन ही नहीं करते जिनका फाइनेंशियल स्ट्रांग ना हो। एकेडमिक चल जाएगा, आपके पास 35% नंबर हैं वो चल जाएंगे, आपके पास सैलरी 15,000 है चल जाएगी, बट आइल्स और आपके फंड्स, ये दो। आइल्स का स्टैंडर्ड क्या है? हाँ, आइल्स का स्टैंडर्ड बैचलर्स के लिए ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5, और मास्टर्स के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6। कनाडा ने अभी तो 6 के नीचे वाला एसडीएस में अलाउड था, जी। ओवरऑल 6 है तो चल हम्म। गया था। हम्म। जैसे एसडीएस खत्म हुई तो उड़ाने शुरू कर दिया उसके बाद। हाँ, तो ये तो 5.5 वाले अब हम भी मना कर देते हाँ, हैं। इसके बाद इसमें एक और बहुत बढ़िया बात है कि अगर आपने सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है लास्ट 5 इयर्स में और 60% से ऊपर है, तो यू कैन अप्लाई विद एमओआई ऑल्सो, बट दैट इज ओनली विद 3 यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, लिंकन और एयूटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं। ड्यूलिंगो भी कुछ कुछ एक्सेप्ट कर लेती हैं। और एक बार आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल गया, देन इमिग्रेशन के लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके। अगर उनको लगेगा कि आपको इंग्लिश इंग्लिश का का कोई क्या है, तो वो क्वेश्चन? इंटरव्यू में आपको कॉल पे करेंगे, ओके। उससे फिल्टर आउट हो जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो सब्जेक्टेड टू इमिग्रेशन ऑफिसर है, इफ दे फील कि इस बंदे का इंटरव्यू कनाडा लेना। में तो होता नहीं है। यहाँ कनाडा में नहीं होता, बट यहाँ पे सब्जेक्टेड टू वीजा ऑफिसर है कि अगर उसको लगेगा तो कि भाई इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये कहाँ से पैसे आए हैं। जैसे अभी परसों ही एक बच्चे का
कोई नहीं, लास्ट वीक आई थी, आज उसका एआईपी आ गया। बट उसमें क्या था, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था, तो उसका क्या था, बल्क में पैसा अंदर जा रहा है, बल्क में पैसा बाहर आ रहा है। क्वेश्चन। बट वो पैसा उसी का है। वो उसने बाहर जॉब की, इंडिया आया, 1 साल उसने स्टॉक मार्केट में उसने काम किया, एंड नाउ ही इज गोइंग फॉर अ बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। तो हमने पूरी 1 साल की स्टेटमेंट निकाली, पूरे 1 साल के कितनी बार पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में गया, कितनी बार बाहर आया, वो सारा एक्सप्लेन करके दिया। और आज उसको एआईपी आ गया, तो एआईपी इज अप्रूवल इन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये लोग पहले वो नहीं देते। सीधा वीजा नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले फीस नहीं लेते। ये पहले प्रोफाइल को अच्छी तरीके से स्क्रूटनी करते हैं, जब इनको लगता है कि हाँ सब कुछ लेजिट है, हम्म, तब वो आईआईपी देते हैं, फिर आप फीस ट्रांसफर करो। लिविंग एक्सपेंसेस अगर आएगा या नहीं आएगा, या वो फीस नहीं इमिग्रेशन, आएगी। वो इमिग्रेशन डिसाइड करेगी कि लिविंग भी देने ही नहीं देने। और ये फीस पूरी 1 साल की जाती पूरी है। 1 साल की। 1 साल की दो। हाँ, पूरी 1 साल की फीस ऐसा भी लेते हैं। होता है कि एएपी अनकंडीशनल है, कुछ फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना, जाओ। वो अगर स्पॉन्सर्ड है, मतलब जैसे पीएचडी वाले बच्चे हैं, उनके ओके, केस में है। उसके केस में। या फिर अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी फीस पे कर दी, ओके। कि ऑफर आया, उसने पूरी फीस पे कर दी, और लिविंग के पैसे उसने यहाँ दिखा दिए, और उस जो फीस पे की है वो भी उसकी 3 महीने पहले मेंटेन थी, सोर्स है, सब कुछ है, उसका भी आंसर करना पड़ेगा, ऐसा उसका भी भी। आंसर। हाँ, वो ये सब नहीं चलता। बहुत सारे कंसल्टेंट ये भी करते हैं कि वो पहले फीस पे करा देते हैं कि नहीं नहीं, अरे आ जाएगा वीजा, कोई बात नहीं, हमने फीस तो दे ही दी है, और इतने फंड का आपके पास एक्सप्लेनेशन है। मेरे पास ये भी केसेस हैं जो अलग अलग रिफ्यूज होने के बाद। रिव्यूज के बाद जो आते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपकी इनकम। अब इंडिया में सबको टैक्स बचाने की बड़ी बीमारी है, तो उसमें टैक्स बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि इनकम चाहे 20 लाख है, आईटीआर में 5 लाख, साढ़े फिर 7 हुई तो 7 हो गई, अब 12 होगी, तो अब सब 11 95 की आईटीआर भरेंगे। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इमिग्रेशन समझती है, और उसी वजह से वो मेक श्योर करती है कि उन लोगों को यहाँ पे इनवाइट करो जो क्लीन बैकग्राउंड से आते हैं। तो कि उनको नंबर भी कम ही चाहिए तो छाड़ सकते हैं। 50 लाख की पॉपुलेशन में वो कितने बच्चे बुलाएंगे? 50 55 लाख की पॉपुलेशन है, बट इफ यू आर स्किल्ड, देन दिस इज द बेस्ट कंट्री टू गो टू। इनकी जो ग्रीन लिस्ट है, हम्म, उसमें 205 प्रोफेशन है जिस जो एब्सोलूट स्किल शॉर्टेज लिस्ट में है। कि अगर आप डॉक्टर हो, आप मोर देन वेलकम। इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, एवरीवन इज इन डिमांड। डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ केयर, फिर आपका ट्रेड्स भी है इसमें। ट्रेड्स भी हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, हेल्थ सब हैं। केयर। हेल्थ केयर, तो ये पर्सनल मतलब सपोर्ट कि वर्कर। सारी डेवलप्ड कंट्री की हाँ, सिमिलर सी लिस्ट है, हाँ, जिसमें हेल्थ केयर रहता है, स्किल ट्रेड रहता हाँ। है, इंजीनियर्स रहते बट हैं, उसमें, स्टेम रहता है बेसिकली। हाँ, स्टेम वाले जितने भी हैं, बट इसमें ये है कि जैसे कनाडा में आप इन ट्रेड कोर्सेज में जा सकते हो। न्यूजीलैंड वीजा नहीं देता ट्रेड कोर्सेज में। न्यूजीलैंड को चाहिए क्वालिटी स्टूडेंट। आप आईटी जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाओ, आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जाओ, इनमें सब में आपको प्रेफरेंस मिलेगी और थोड़ी वीजा भी बहुत मिलेगी। लिस्ट इधर उधर है, बट हाँ, मेजरली इट इज सेम। बिल्कुल। और रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि सारी डेवलप्ड कंट्रीज में जो स्केर्सिटी है, हाँ, जिस तरह के लोगों की स्केर्सिटी है, हम्म, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। चार हाँ, पांच मेजर प्रोफेशंस है, हाँ। मेजर ये वर्ल्ड ट्रेंड है ना, ये देखो, वर्ल्ड। आईटी के बिना कोई भी कंपनी स्केल नहीं कर सकती, तो आईटी वाले हर जगह चाहिए। चाहे यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, डैलस। जर्मनी। हाँ, आईटी हो गया। अब हेल्थ केयर की, हेल्थ जब केयर। लोग हैं तो बीमार पड़ेंगे, उन्हें बचाने वाले चाहिए। अब जब लोग आएंगे तो घर बनाने वाले लोग चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन वाले लोग चाहिए। तो ये पूरी वही इकोनॉमी के आसपास घूमते हैं। वो जो बिजनेस वाले जो कोर्स थे, वो वो तो कनाडा ने भी बंद किया और अब कनाडा न्यूजीलैंड ने भी, न्यूजीलैंड में भी मैं बोलता हूँ कि जो लोग मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, ऐसे कोर्सेज में जा रहे हो, तो आपको जाति मैनेजर बनाएगा कौन? कौन बनाएगा मैनेजर? आपको मैनेजर बनेगा ही नहीं आप। जब आप मैनेजर नहीं बनोगे तो आपकी पीआर नहीं होगी। और मैनेजर में क्या होता है कि क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस के साथ आप काम करते हो, यू डोंट हैव पावर ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि कौन बिजनेस ओनर आपको अकाउंट की वो देगा? यू डोंट हैव कि आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? तो आपको जो मैनेजर वाले हम काम नहीं एक्चुअली कर, नहीं आ सकते, हाँ, टैग लग जाता होगा चाहे। सुपरवाइजर बनते हो आप। तो सुपरवाइजर। इमिग्रेशन कहती है कि आप जो काम कर रहे हो वो आप एक सुपरवाइजर का कर रहे हो, मैनेजर का नहीं कर रहे हो। कनाडा में भी ऐसे ही हाँ, टीयर लेवल जज होते हैं। हाँ, अब उसके अंदर जॉब टाइटल वाइज तो टीयर लेवल मिल जाता है, हाँ, जॉब टाइटल मैच कर रहा है, दिस इज द टीयर। हाँ,
जब सैलरी स्केल देखते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं कि हाँ भाई तू क्लरिकल काम कर रहा है, टीयर 4 बनता है ये, हाँ इट इज नॉट टीयर 1, एग्जैक्टली जस्टिफाई नहीं होता। हाँ सो वो सैलरी भी मैच होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैच होनी चाहिए, सिमिलर थिंग इज बिल्कुल देयर। बिल्कुल। तो तो ये अभी प्रॉब्लम आती है। हाँ ये प्रॉब्लम बहुत मेजर है। और इसी को ये लोग ना एक्सप्लॉयटेशन में लेके जाते हैं सीधा, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का हमेशा टसल होता है जब लो स्किल्ड होता है। बट जब हाई स्किल्ड होता है तो वो ऑलरेडी इतनी डिमांड में होता है कि वो अपनी मर्जी की सैलरी डिमांड कर सकता है। जैसे एक कपल था इसी बिल्डिंग में हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स हैं वो, तो वो गए न्यूजीलैंड। तो द गर्ल वॉज क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड द गाय वॉज डेटा स्पेशलिस्ट। ही वेंट फॉर डेटा साइंस प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। उसकी वाइफ को 6 महीने लगे, बट उसको जो जॉब लगी तो सीधा 80,000 की जॉब लगी। 80,000 में उसका पूरा अपना एक साथ ही कवर हो गया जो उसने 6 महीने कर बैठे। अब उस जॉब के बाद दे विल गोइंग टू गेट पीआर स्ट्रेट अवे। तो ये बहुत वो है, ये वैल्यू स्ट्रेट टू रेजिडेंस है, बहुत वैल्यू ऐड है। स्पाउस जा सकता है, बच्चे ले जाओ अपने। और जैसे कनाडा में तो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा फंड्स दिखाना पड़ रहा है, न्यूजीलैंड में ये भी नहीं है कि आपके अगर वाइफ स्टूडेंट है हस्बैंड के, आपको सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए दिखाने होते हैं और आप ले जा सकते हो। उसमें $5,000 है हाँ कनाडा में, तो सिमिलर। एडिशनल किट्स में जो ऐड होता है वो मेरे ख्याल से 2,500 पर पर्सन ऐड ढाई होता है, हजार हाँ वो आपका। बच्चों का वहां पे हाँ, जाता है, और उसका भी सोर्स नहीं 2,000 देना, कुछ नहीं करना उसका सोर्स नहीं देना। ना, ओके, बस सिर्फ स्टूडेंट वीजा का देना है स्पाउस वाले। सोर्स जो है वो माइंड बॉगलिंग है। मतलब सबसे क्लीन प्रोफाइल बताता हूँ मैं आपको। किसी के पेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनका जीपीएफ है, ठीक है। इतनी क्लीन प्रोफाइल है ना वो कि फट फट वीजा आएगा। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा सेव होता हुआ है। क्वेश्चन तो मार्क। जिसके पास 25-30 लाख रुपए हैं, 15 लाख का लोन लो, 25 लाख जीपीएफ से दिखाओ और जाओ। किसी का पेरेंट्स बिजनेस में है जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जो कॉन्टिन्यूसली जीएसटी भर रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू जस्टिफाइड होता है। ठीक है। उससे आप आज पैसे ट्रांसफर करो अकाउंट में, 3 महीने रखो, 3 महीने बाद वीजा अप्लाई करो, क्योंकि टकाटक हमारे वीजा आएगा। पास तो बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम है, ये जस्टिफाई। आएगा। किसी के पास प्राइवेट जॉब है, उसका पीएफ है, उसकी जॉब है। यहाँ पे ईएमआई का भी चक्कर है। अगर आपने लोन लिया 35 लाख का, पहली बात तो वो गवर्नमेंट बैंक से होना चाहिए। दूसरा, सिक्योर्ड होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी रख के लोन लिया है। अब तीसरा कैच आता है कि उसकी ईएमआई बनेगी अराउंड 45-50 हज़ार रुपए की। तो जो स्पॉन्सर है लोन में, उसकी इनकम उस ईएमआई से 3 गुना होनी तो चाहिए। 1.5 लाख रुपए इनकम चाहिए, और यानी दो कि स्पॉन्सर हैं तो दोनों की मिला के मिला के होनी मिला के चाहिए। होनी चाहिए। 18 लाख की आईटीआर इंडिया में बहुत लिमिटेड लोग हैं जो बहुत भरते हैं। कम, जो आईटी वाईटी वाले हाँ होंगे वो उन्हीं को मिलती है। पैकेज होगा उनके अब लिए तो। उनको जॉब मिलेगी मिलेगी वहां जाके भी, वो यहीं ऑलरेडी स्किल्ड हैं, उनको वहां जॉब मिलेगी, उनको वीजा भी मिलेगा, उनको पीआर भी मिलेगी। अच्छा, मैंने अगर हम्म, जैसे यहाँ कोई गारंटर है, हाँ तो मान लो स्पाउस को बनाया गारंटर, हाँ और उसके बेस पे ले लिया लोन, हाँ स्पाउस चला गया, स्पाउस वीजा लगा के, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, हाँ बाद में दिक्कत नहीं है। क्योंकि आईटीआर उसकी स्ट्रांग है ना, वो स्किल्ड है। अच्छा, फिर ये माना जाएगा कि वहां कमा के यहाँ लोन कर हाँ दे देगा। देगा वो, क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन फाइल करनी है तब उसमें डिक्लेयर थोड़ी ना करना है कि स्पाउस जाएगा। जाएगा, ओके। पहले तो स्टूडेंट आएगा, तो स्पाउस के बेसिस पे उसका वीजा आ गया, और उसके बाद वो स्पाउस गया वहां पे, वो ऑलरेडी स्किल्ड है। ये वाला केस वही है। तो इन लोगों ने यही किया। पहले लड़का जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड पढ़ने गया, वाइफ जो है वो आईटी जॉब कर रही है यहाँ पे। उसका 15-16 लाख का पैकेज था। तो वो उन्होंने स्पॉन्सर बन गए, लोन लिया, गारंटर बन गए। गारंटर बन गई। उसने अपने पापा के फंड दिखाए 5-7 लाख रुपए जो अपने थे, उनकी खुद की सेविंग थी, उनके खुद के पीएफ थे, और 45 लाख का लोन था जो कि चाहिए भी नहीं था। ठीक है। तो हमने इमिग्रेशन को बोला कि इतना लोन नहीं चाहिए, दिस इज जस्ट फॉर दी सेफ्टी मार्जिन। हम्म, हमें जो लोन चाहिए वो 25 का ही चाहिए। ठीक है। तो हमारी जो ईएमआई बनेगी वो 25 के हिसाब से बनेगी। एंड इमिग्रेशन गेव देम द वीजा। यहाँ पे इमिग्रेशन ना बात करती है, कनाडा की तरह नहीं है। कनाडा वाले तो पता नहीं। यहाँ पे अगर उनको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, दे विल सेंड यू अ लेटर कि भाई मुझे ये एक्सप्लेन करके दो। दे विल कॉल द एप्लीकेंट कि भाई ये क्या है, कैसे है, क्यों है। दे कैन, इफ यू आर फाइलिंग विद एलआईए, तो फिर लॉयर को फोन करती है, उनको ईमेल करती है। आपको नहीं तंग करेगी। आपसे तो सिर्फ 4-10-15 सवाल हैं, वो पूछ लेगी भाई क्यों को इस कोर्स में आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, लोन रिपे कैसे करोगे, वो तो हम एसओपी में सब लिख ही चुके हैं। वो सब एक्सप्लेनेशन सही तो होती काफी फ्लेक्सिबल है, सब है कुछ यहाँ। जो है फंड्स पे है। कनाडा से अगर कोई
डॉक्यूमेंट आ गया, हाँ एडीआर बोलते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट हाँ रिक्वेस्ट, हाँ आ गया तो समझो कांड हो चुका है। यहाँ से तो कोई कम्युनिकेशन आना, हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो स्क्रूटनी में कुछ गया है। कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ क्योंकि वीजा ऑफिसर कुछ स्क्रूटनी कर चुका है, चाहे डिग्री की कर चुका है, हाँ चाहे फंड की कर चुका है, हाँ, उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया है जो कि फटेगा। दस हाँ दिन का टाइम मिलेगा उसको रिप्लाई करने के लिए। हाँ जैसे किसी की डिग्री हाँ जेन्युइन भी है, चाहे हाँ हाँ, और वेरीफाई नहीं होगी। तुम रह रहे हो दिल्ली में, डिग्री जयपुर से, हाँ तुम जस्टिफाई करो तुम जयपुर में स्टडी करने कैसे गए थे, हाँ ये तो तुम्हारे आसपास भी नहीं है। हाँ, बहुत सारी डिग्रीज होती है, बहुत सारी दूर दूर से है। मेरी खुद की ट्रिपल आईटी हैदराबाद से है, मैं अगर फाइल करूँ पॉसिबली मेरे को एडीआर आ जाए हाँ कि तू ये हैदराबाद डिग्री करने कैसे पहुंच गया था। हाँ जनरली होती है ऐसी यूनिवर्सिटीज की है कि जो शेडी हाँ टाइप यूनिवर्सिटीज है जिनका नाम पहले खराब है। हाँ कोई ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है कनाडा के अंदर, हाँ। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज 10-12 ऐसी हैं जो उन्होंने कर रखी है, इनकी तो एडीआर आनी आनी है। अभी अभी तो हाल ये हो गया है कि कोई न्यूजीलैंड के लिए फाइल भेजता है तो उसके डॉक्यूमेंट देखते ही नेक्स्ट सवाल ये जाता है, भाई इसमें से कोई फेक तो नहीं है। ये है। पहले बता दे, अगर फेक है तो हम पहले से ही कांटा मारें, क्योंकि अभी स्टेक्स आर वेरी हाई, लाइक यू नीड टू मेंटेन द रेपुटेशन। तो वो रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए यू कैन नॉट प्ले विद एक आध बच्चे पे, उसका ये कुछ भी अपने को नहीं चाहिए। ये फंड्स का बड़ा हम्म। कनाडा में रहता है, पीपल जी। प्ले रियली स्मार्ट है। हाँ। और वो फंड रख के हम्म। स्टेटमेंट या बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल के, हाँ तुमने तो फंड निकाल लिए, हाँ उनका भाई अगर चेक हो गए हाँ 1 रुपया भी कम हुआ इसके हाँ, अंदर, यू विल गेट ए बैन ऑफ 5 ईयर्स। करेक्ट। मैं कह पैसे जब तक कनाडा नहीं पहुंचता, ये पैसे मत निकाल लियो इसमें से। सेम इज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी सीधा रिजेक्ट कर देगा, और इफ यू विल प्ले अराउंड विद देम दे विल नॉट स्पेयर यू। तो बैन कितना लगता है अगर 5 साल का ही है। 5 साल का ही बैन। 5 साल। तो बहुत सारे लोग ऐसे स्मार्टनेस करके एफडी करवाई है, हाँ। एफडी का सर्टिफिकेट दे दिया, हम्म। एफडी विड्रॉ करवा ली। अभी एक केस हमने रोक रखा है, उसने 1 साल पहले पापा ने चाचा को 10 लाख दिए, अब चाचा ने उनको वापस 19 लाख रुपए दे दिए। तो मैंने कहा भाई ये 9 कहाँ से आ गए? कह रहे वो बहन की शादी थी तो उन्होंने कैश में दिया था, उन्होंने वापस कर दिया। मैंने कहा मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ? इमिग्रेशन ऑफिसर थोड़ी मानेगा इस बात को कि बहन की शादी थी 9 लाख रुपए आ गए। मैंने कहा अब 3 महीने रुक, 1 साल ये जब क्रॉस होगा उसके बाद हम ये फाइल करेंगे, अभी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिस्क्लोज दिस। अब प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो जीपीएफ है उसकी अपडेटेड स्टेटमेंट नहीं मिल रही उसको, तो उसके जीपीएफ में ऑलरेडी इनफ पैसा है। अब मैंने कहा जब ये अक्टूबर में अल्टीमेट। आएगी तब हम तेरा वीजा फाइल करेंगे, क्योंकि अब ये वाइफ का केस है, हस्बैंड ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है और उसको मैंने मना किया था कि आईसीआई बैंक के लोन पे तेरा वीजा नहीं आएगा, बट आईडीपी ने बोला आएगा। मैंने कहा तो ले लो। अब वो बेचारा धक्के खा रहा है, आप ही के वहीं का है वो, हरियाणा का। ठीक है। तो अभी हम उसको कह रहे हैं कि भाई तू वेट कर, तेरा वीजा आएगा, पक्का आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। you can't play with इमिग्रेशन नो, दे नीड क्लीनेस्ट ऑफ clean पीपल, एंड वंस यू गो देयर एक आध 2 महीने का स्ट्रगल जरूर हो सकता है, बट काम आपका बढ़िया बनेगा। बैलेंस। इमिग्रेशन में ये तो एक बेनिफिट रहता है कि बैलेंस है, तो फिर ये नहीं है कि एकदम से भीड़ उठ के आ ना गई है, ना, फिर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दिस इज वन बेनिफिट। न्यूजीलैंड ने कभी अपनी फ्लड गेटिंग नहीं की कि भाई आ जाओ, कभी नहीं की, उसका हमेशा से। मुझे अभी तक ये फील हुआ है हम्म। कि वो उनका ऐसा नहीं है कि भर दो बस, नहीं नहीं, ये इमिग्रेशन को या स्टूडेंट्स को उन्होंने एक इनकम का सोर्स बना लिया ना। हो। अभी तक मुझे ऐसी हाँ अभी तक मेरी फीलिंग यही है, हाँ, अभी तक मुझे। नीदरलैंड में बहुत सॉर्टेड है, तो अगर वहाँ पे जो ग्रीन लिस्ट भी है, अगर कोई बच्चा ग्रीन लिस्ट में भी नहीं है फॉर एग्जांपल, ये भी एक बहुत लोगों के मन में वो रहता है कि भाई हमारा कोर्स जो है ग्रीन लिस्ट में नहीं है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड है ग्रीन लिस्ट में, 2 साल पढ़ो, पीआर ले लो। मेडिकल वो तो हमने डिस्कस कर लिया, अब मैं कहता हूँ जो ग्रीन लिस्ट में नहीं है उनका क्या होगा। उनमें है 6 पॉइंट पीआर सिस्टम, तो जैसे अभी आपने बताया कनाडा में मास्टर्स करो और वो आरसीआईपी में कर लो। इजी सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि 5 पॉइंट आपको मास्टर्स के मिलेंगे, टोटल 6 चाहिए बस, तो आपने 5। कोई भी मास्टर्स कर ली, हाँ कोई भी मास्टर्स, 5 मिल गए। 5 मिल गए। अब आपको 1 पॉइंट के लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए न्यूजीलैंड में विद मीडियन वेज। मीडियन वेज इज $31, मिनिमम वेज इज 23। कोई भी स्किल्ड वर्क में अगर है $31 मिल जाती है तो उसमें। आपकी आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की, सबकी पीआर। फाइनेंस में भी चला जाए, इंश्योरेंस में चला जाए, आईटी में चला जाए, तो उनकी $31 से ऊपर यूजली सैलरी बिल्कुल होती है। बिल्कुल, तो बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको आईटी प्लस बिजनेस का कॉम्बिनेशन ओके, देता है। ठीक है। इसकी जो जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी है एज पर career.govt.nz
इट स्टार्ट फ्रॉम 80,000 एंड अबव, विच इज ऑलरेडी स्किल्ड में आ गई, टीयर वन में आ गई। तो आपको नो ब्रेनर कोर्स चाहिए, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, ये चाहे साइंस से हो। इसके 1 ईयर का ऑप्शन अवेलेबल है? 1 ईयर ऑप्शन। दिस इज मतलब न्यूजीलैंड में तो करो तो वैसे 1 ईयर का ही करो। 1 ईयर ही करो, क्यों- इससे ऊपर लिविंग में फंस जाओगे, क्योंकि फीस में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे। क्योंकि 2 साल की फिर फीस दिखाओ, 2 साल के लिविंग क्रेजी, क्रेजी बहुत पैसा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो 1 ईयर का कोर्स, फीस जो है इसकी $30,000, ओके, विच इज 15-16 लाख के आसपास। ठीक है, 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस 10 लाख। ठीक है। तो अगर आपके पास 30 लाख जस्टिफाइड फंड्स हैं, तो आपको न्यूजीलैंड जाने से कोई स्पाउस नहीं रोक सकता। स्पाउस के साथ ही हो जाएगा। स्पाउस, स्पाउस के साथ हो जाएगा। और होता ये स्टेप बाय स्टेप है, पहले स्टडी वीजा लो और फिर स्पाउस वीजा लो। और सब साथ में जा सकते हो अगर जा प्लानिंग ढंग साथ में से। सकते हैं बट है एप्लीकेशन हाँ, में। एप्लीकेशन ये है। तो अगर आप नवंबर प्लान कर रहे हो, आपने आज एप्लीकेशन लगाई, कंडीशनल लगाओ, ऑफर लेटर लो, आइल्स का एग्जाम दो, पीटी का एग्जाम दो, आपकी कंडीशन रिमूव हो गई, आप बैंक से लोन लो, 15 लाख अपने दिखा दो, 15 लाख का लोन ले लो, 30 हो गए। 30 लाख पे आप इमिग्रेशन में फाइल लगाओ, क्योंकि 15 लाख के लोन पे आपकी जो ईएमआई बनेगी 20-25 हज़ार की बनेगी। यानी कि किसी की 60-70 हज़ार भी सैलरी है, तो वो इजीली पे ऑफ कर सकता है लोन को। तो 7 × 12, 8-9 लाख की आईटीआर पे आपका काम बन जाएगा, स्मूदेस्ट केस। तो 1 ईयर मास्टर्स। 1 ईयर मास्टर्स, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। उस 3 साल में 1 साल का आपको मीडियम वेज में एक्सपीरियंस चाहिए, और 1 साल का। अगर वो ग्रीन लिस्ट में आ रही है फिर तो वो भी नहीं चाहिए? ग्रीन लिस्ट में आ रही है तो स्ट्रेट टू रेजिडेंस, बस सीधा पीआर। सीधा। और अगर नहीं आ रही ग्रीन लिस्ट में, तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और और फिर फिर पीआर। और अगर स्पाउस को लेना है तो? एग्जैक्टली, अगर स्पाउस को मिल गई। अभी एक केस में एक लड़की गई, अर्ली चाइल्डहुड के केस में। उसका जो पति था वो इंडिया में जॉब करता था, आईटी सेल्स की। उसको विद इन 1 मंथ वहां पे न्यूजीलैंड में 100,000 की जॉब मिल गई। सीधा पैकेज अच्छा अब वो, उसका पैकेज अच्छा है, था। अब वो स्ट्रेट टू रेजिडेंस, उसको कोर्स खत्म करने की भी जरूरत नहीं है। ये भी ये कैसे भी किया? सीधा, अब वो, उसे कोर्स भी खत्म करने की जरूरत नहीं है, सीधा वो अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टू वे इमिग्रेशन है, कि चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, हम्म, क्योंकि वो स्किल्ड है, क्योंकि उसने बीटेक की है, उसने लंदन से ही पढ़ाई करी है लड़के ने, तो उसके पास तो 6 पॉइंट पीआर सिस्टम में भी फिट हो रहा है, वो ग्रीन लिस्ट में भी फिट हो रहा है, और टीयर वन उसके पास जॉब है ही। ये जनरली रहता उन्हीं क्लाइंट्स के पास है। मेरा भी क्लाइंट बेस जैसे हाँ एवरेज जो एज है 35 हाँ हाँ, ईयर थर्टी होती है, फाइव हाँ। इन्हीं के पास ही ये फैसिलिटी होता है। हाँ, हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं और ये यही मिलते हैं क्लाइंट। 30 के नीचे, 25 के नीचे तो बहुत रेयर होते हैं ऐसे। वो तो फ्रेशर्स हैं सब, हाँ। फ्रेशर्स हैं वो, ऐसे लेवल पे भी नहीं होते हैं। नहीं, बट उसमें जो जैसे जिन्होंने बीटेक की है, उनके लिए तो मजे हैं, क्योंकि बीटेक के बाद आप जो भी इंजीनियरिंग में जाओगे, वो सब ग्रीन लिस्ट में है न्यूजीलैंड में सारी। सिर्फ जॉब लो, उसमें सैलरी का भी चक्कर नहीं है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, जॉब लो, एम्प्लॉयर एग्रीगेटेड होना चाहिए, मींस कि जैसे एलआईएमआई के लिए वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसी बिजनेस को यहाँ पे एग्रीगेटेड होना पड़ता है। और क्योंकि हम लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर कंपनी है, तो हम उसको उसमें भी हेल्प करते हैं। तो पूरा का पूरा जो उसका प्रोसेस है, उसकी वर्क परमिट हो गया, उसकी आगे पीआर हो गई, सब कुछ हम एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन, लास्ट तक हो जाएगा। लास्ट तक सब कुछ करके देते हैं। ठीक है। और क्या 3 साल की डिग्री के साथ भी 3 साल मास्टर्स मिल का, जाती है या कहीं कोई भी ऐसे? ओपन से भी मिल जाती है। अगर किसी ने इग्नू से भी पढ़ाई करी है, तो भी वो सीधा मास्टर्स में जा सकता है। अरे आपने बोला था कि टीयर 1 यूनिवर्सिटी से है तो बिना हाँ, आइल्स टीयर के वन, पास है। टीयर टीयर, 1 कौन सी मतलब? नेक जैसे नेक से देते नेक हैं? नेक वन वाली जो है सेक्शन, तो एक नूसर नेक गाइडलाइंस होती है। नेक ए और अबव या कुछ और? हाँ, मैं समझाता हूँ आपको। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक लिस्ट जारी की है, जिसको बोलते हैं नूसर गाइडलाइंस, ठीक है, NOOSR। इसमें सारी इंडिया की जितनी भी लिस्ट है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उसकी लिस्ट है वो। ठीक उसके आगे सेक्शन 1, 2, 3, 4 लिखा है। ठीक तो है। जितनी भी सेक्शन 1 है, वो सारी एलिजिबल है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो लेवल टोटल हाँ वो बनाता है कि टीयर 1 ऑफ हाँ, ऑस्ट्रेलिया, टीयर 1 ऑफ इंडिया इक्वल इंडिया, टू विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ऐसे ऐसे करके। इसमें अगर मैं कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटी बताऊं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का, कुरुक्षेत्र भी होगी उसमें? MDU। कुरुक्षेत्र, हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये जितनी एलपीयू भी, भी है उसमें? LPU शायद 2 में है। टू में, ओके। तो मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो जो देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो उससे क्या है कि अगर उस यूनिवर्सिटी पढ़े हो, तो आप यूनिवर्सिटी में जाके
आप एमओआई के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो और आइल्स की देने की जरूरत नहीं है। बस वो वीजा के लिए तो चाहिए ही नहीं। वीजा के लिए तो चाहिए ही नहीं। जैसे यूके में है, कैश मिल गया तो अपना तो डन। यहाँ पे अगर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल गया, उसके बाद आपको पीसीसी कराना जरूरी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो किसी का अगर इंडिया में केस चल रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। और मैं आपको भी बता देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज डिक्लेयर करना, अदरवाइज अगेन 5 साल का बैन, और हमें तो ट्रबल बिल्कुल नहीं चाहिए। कनाडा में पीसीसी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज उल्टी है कनाडा में, जी। जो अभी आपने डिस्कस की, कि चाहे एडमिशन हम्म। एमओआई के बेस पे मिल जाए, हाँ। ड्यूलिंगो के बेस पे मिल जाए, हाँ। आईआरसीसी फिर भी आईएलसी आपसे मांगी। मांगेगी। तो ये न्यूजीलैंड के केस में उल्टा है। हाँ, न्यूजीलैंड को जरूरत नहीं है इसकी। और इसके बाद आपकी पीसीसी मेडिकल। तो मेडिकल जो होता है वो चेस्ट एक्सरे होता है सिर्फ। ओके। अगर स्पाउस है तो उसको फुल मेडिकल चाहिए। ओके। और बच्चों का भी अगर छोटे हैं तो उनको नहीं चाहिए, बट अगर बड़े हैं तो उनका भी चेस्ट एक्सरे होगा। कोई भी 2 साल से ऊपर का वीज़ा है तो उसमें फुल बॉडी मेडिकल है, 1 साल मतलब 2 साल से कम है तो सिर्फ चेस्ट एक्सरे है। और आपका फाइनेंशियल्स, एकेडमिक्स, एसओपी, बस यही सब लगाना है और वीज़ा आ जाता और एज का कुछ है? क्योंकि हमने तो, मैं आपसे भी है। हाँ। डिस्कस कर ही रहा था, एज वाले भी। हम्म। तो हमने तो हर केस, हर एज के लोग हाँ, एज न्यूजीलैंड का कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आप 50 साल के भी हो। और हमने पर्सनली खुद वीज़ा लिया हुआ है तो तो इवन 50 ईयर्स फॉर तक। एवरीवन, हम्म। एज, किसी एज में एडमिशन लेना, यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस होना अलग चीज है, हाँ। वीजा भी आना एक अलग चीज है। हाँ। सो दिस इज नॉट एवरीडे थिंग कि हाँ हर रोज नहीं, रूटीन। 50 साल की उम्र वाला बंदा आता भी नहीं है आपके पास। वो उनके मुझे दिमाग में ही माइंडसेट हो लगता जाता है है कि कि हमारा तो हाँ, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। बट न्यूजीलैंड में हमने 40 प्लस तो नॉर्मल है, मतलब 40 प्लस वालों के लिए तो ये है कि कितने सारे लोग हैं जो बीपीसीएल में यहाँ पे काम कर रहे थे, कितनी आईटी वाले हैं, कितने ही ऑपरेशंस वाले हैं, अकाउंट्स वाले हैं, जो जिन्होंने अपनी एड़ियां रगड़ दी यहाँ पे। बट उनकी सैलरी क्या कहते हैं 50-60 हज़ार से ऊपर पहुंच ही नहीं रही थी। 60 लाख रुपया। हम्म। तो अब वो वहां जाकर 70-80 थाउजेंड, 100 थाउजेंड पे बैठे हैं। एंड बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो पहुंचता ही हाई हाँ। होता है, और दैट इज। प्लस स्पाउस को अलाउड है, तो अगर स्पाउस को इंग्लिश बोलनी आती है तो आपके लिए तो आप ये मानो कि आप गोल्ड माइन पे बैठे हो। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि घर में एक पढ़ा लिखा हस्बैंड पढ़ा लिखा है बट हाँ, वाइफ उतनी नहीं है। हाउस वाइफ है। हाँ, हाउस वाइफ है, तो वीज़ा तो उनका आ जाता है, हम्म, बट उन्होंने कभी इंडिया में काम नहीं किया। का हाँ, तो वो पोटेंशियल कम हो जाता है। वो होता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आपके बारे नहीं आ लेकिन रहे। इसमें एक और चीज भी है, जैसे कि कनाडा में भी सिस्टम है और सारी डेवलप कंट्रीज में है, कि आप किसी तरह की भी जॉब कर लो, एक बेसिक लेवल की इनकम तो हर कोई बना लेता है। हाँ, वो तो इवन इफ यू मिनिमम आर वेज है, मिनिमम वेज। किचन हेल्पर भी हो, हाँ। तो भाई कुछ ना कुछ तो निकाल ही लोगे आप। हाँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेड ही है ना सब ना ना कुछ। ना ना, वो तो नहीं केस है, मैं तो अच्छे स्टैंडर्ड लिविंग की बात मतलब कर रहा ये था। है कि आप वो पैकेजेस में नहीं पहुंचोगे, हाँ। $100,000 हाँ। वाले पैकेजेस में नहीं पहुंचोगे, बट एक डिसेंट तो आप बना लेते हाँ, हैं। तो 3,000 $4,000 के इसमें आसपास तो आप हर कोई बना लेता है। न्यूजीलैंड की जो मिनिमम वेज है वो है $23.60। दैट इज रियली गुड। कनाडा में वो हाँ। 16 के आसपास तो एवरेज है। अगर आप वो कॉस्ट कंपैरिजन पैरिटी पे जाते हो तो वो ऑलमोस्ट सेम ही आती है, क्योंकि वो 65 के आसपास है और ये 50 के आसपास है, तो वो जो 30% का डिफरेंस है तो वो वहीं आ गया। बट नहीं, ये है कि हाँ। दिस इज अगेन, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो शायद आप, यू मे बी, बट आई फील कि स्टिल इन न्यूजीलैंड देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी लोग ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा सेव कर पाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हाँ, अब इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या होता है कि अगर आप मेन सिटी सेंटर में रहते हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होगी। है। बट आइडिया, अगर हाँ। आइडिया फॉर ए फैमिली हाँ। कितना? हाँ, तो मैं अभी बता देता हूँ उसको, थोड़ा इमेजिनेशन पे लेके जाता हूँ। तो सिटी सेंटर में क्योंकि पार्किंग का पे करना है आपको, सब सब चीज़ पे करनी है, तो वो महंगा पड़ जाता है। बट अगर आप एक दो स्टेज पीछे जाते हो सबर्ब्स में, तो सबर्ब्स में कॉस्ट जो आपको 2 बेडरूम हाउस 400-450 का मिलेगा वीकली। वीकली? हाँ, ये अभी मैं कनाडा यही में सेम वीकली वाला सिस्टम नहीं है। अभी मैं सेम अपने ब्रदर इन लॉ से भी बात कर रहा था ना, तो वो जैसे ही मैंने तो बोला ना $2,000 में घर मिल जाएगा, कह रहा इतना सस्ता। तो वो कह रहा है कि मैंने कहा कि भाई ये वीकली है, ये मंथली नहीं है। तो 450 के आसपास 2 बेडरूम, 500 भी मिल सकता है, 550 भी मिल सकता है, 600 भी मिल तो सकता इट है। इज ऑन एवरेज 2,500 पर मंथ इन हाँ। कनाडा। हाँ। तो ये हो गया। उसके बाद ग्रोसरी $100 में मानता हूँ पर पर्सन पर वीक, ये मतलब लग्जरियस ग्रोसरी।
ये वहाँ पे जनरली हमारा जो रहता था फॉर ए हाँ फैमिली ऑफ फोर, हाँ, इट वाज लाइक $800 to $1,000 पर सेम हो मंथ। गया। हाँ, तो वो अगर मैं इसको बल्क में खरीदूं, कि मैं क्योंकि स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट जा रहा है, तो उसको थोड़ा आइडिया ये कैलकुलेट करना। 100 पर वीक है क्या? 100 पर वीक, पर वीक। जिसमें आप बाहर से भी खा रहे हो, घर पे भी सब बना रहे हो, सब कुछ। कुछ कर रहे हो। तो ये $400 हाँ, हो गया। तो अब जैसे अगर मैं एक बंदे की बात करूं तो उसका रेंट आएगा 200 से $250। हम्म, $100 का खाना, 350। $100 का ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल बिल और ये सब मिला लेता हूँ, तो जो $23 × 20 इज 460। तो 460 दैट इज पार्ट टाइम इनकम। पार्ट टाइम इनकम जो आप अलाउड है आपको काम करने की, तो 460 में से आपके आफ्टर टैक्स अराउंड 430 के आसपास आएंगे, विच इज एग्जैक्टली इनफ व्हाट यू नीड टू जितना हैव अ चाहिए उतना। रिलैक्स लाइफ, कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। करीब $1,600 के आसपास, 1600 हाँ, $1,800 बन बन जाएगा। जाता और प्लस जो समर वेकेशन है उसमें फुल टाइम कर सकते हो, शेड्यूल्ड वेकेशन है उसमें फुल टाइम कर है। सकते सेम हो। सेम हाँ इन कनाडा। कनाडा में 24 hours पर वीक अलाउड है अभी। हाँ सो इनकम लेवल आर, हाँ, दे आर गोइंग टू बी सेम, फिफ्टीन ऑलमोस्ट। हंड्रेड डॉलर्स के आसपास। लगभग इतना ही खर्चा है और इतना ही हाँ, एक्सपेंस है, तो बस। अपना एक्सपेंस बच्चा निकाल लेगा उसमें। और उसके बाद जब आप फुल टाइम पे आते हो तो देर इज नो लिमिट, यू गेट ओपन वर्क परमिट। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी लोकेशन पे कहीं भी काम करो, कितने पैसे कमाओ, जितना ज़्यादा रिमोट चले जाते हो आप, उतने ज़्यादा पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी होती है। बट आईटी में उल्टा है, आईटी में जितना ज़्यादा आप मेट्रोपॉलिटन के पास लेकिन रहते हो। उसमें वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम आ जाता है, रहते हाँ लोग बाहर है, हाँ 1-2 दिन हाँ कंपनी जाना होता है। हाँ, आई वो आपके वर्क कल्चर पे डिपेंड डिपेंड करता है। करता है हाँ कौन सी कंपनी है। हाँ। आई हैव मैनी क्लाइंट्स हम्म। जो सॉल्ट मैरी में रहते हैं, जो हाँ सबब हाँ एरिया है, हाँ कम्युनिटी है, हाँ, जो करीब 7-8 घंटे दूर है टोरंटो से। जी। तो रहते वहां थे, हाँ और एक दिन आना होता था तो एक दिन वो आ जाते थे, हाँ अपना ऑफिस ऑफिस लगाया, हाँ नाइट की बस लेके आए और हाँ नाइट की बस लेके चले गए। हाँ एक दिन ऑफिस कर लिया उन्होंने, हाँ। तो उनका बढ़िया चला था। सॉल्ट मैरी लेस कॉस्टली जगह है। हम्म। सैलरी उनको मिल रही थी फॉर टोरंटो जो हाँ, स्टैंडर्ड है वैसा। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे ही वहाँ पे भी है बहुत सारे लोग जिनको हफ्ते में एक दिन जाना है, कभी महीने में एक बार तो दे जाना है। कैन लिव हाँ, लिटिल बिट आउटसाइड एज वेल। जैसे एक अर्ली चाइल्डहुड का प्रोग्राम मैं बताता हूँ आपको। वो ग्रेजुएट डिप्लोमा है, लेवल 7। उसमें स्पाउस ले जाना अलाउड है, स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलता है ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद। ड्यूरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा भी ऑल्सो इट्स एन ऑनलाइन क्लास। तो आपको 16 घंटे किसी भी सेंटर में जाओ, उसमें 16 घंटे काम करो, दैट्स पार्ट ऑफ योर करिकुलम। ठीक है। और आप पूरी कंट्री में कहीं भी रह सकते हो। तो अगर लेट्स सपोज आप हस्बैंड वाइफ गए और हस्बैंड को जॉब मिल गई क्राइस्ट चर्च में, ठीक है बस। आप बैग उठाओ, क्राइस्ट चर्च पहुंच ये जाओ। 1 ईयर है या 2 ईयर है? 16 मंथ्स। अच्छा, 2 ईयर। 16 मंथ का प्रोग्राम है। और उतना ही फंड और उतने ही सब कुछ उसके हिसाब हाँ, से। उसी के हिसाब से दिखाने हैं। तो यहाँ पे जैसे कनाडा में 16 मंथ इज स्प्लिट इनटू टू टू ईयर्स ईयर सीधा। यहाँ स्ट्रेट 16 मंथ्स है। पर सेकंड का तो कुछ दिखाना नहीं होता ना। हाँ, नहीं, यहाँ पे 16 महीने का दिखाना सोलह है। महीने हाँ, लिविंग 16 महीने के दिखाने, लेकिन दिखाने हैं। हाँ, फीस पूरी दिखानी है। फीस भी पूरी और लिविंग भी 16 के। लिविंग 16 तो की। 20,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 16, 16। 67 दिखाने हैं। अब आपको जॉब मिल गई क्राइस्ट चर्च, आप उठ के क्राइस्ट चर्च चले जाओ। वहीं पे आपके हस्बैंड फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप वहीं पे अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में अपना काम कर रहे हो, यू आर सॉर्टेड। आपको लेट्स सपोज वेलिंगटन में जॉब मिल गई, वेलिंगटन जहाँ चले जाओ, जहाँ मिल गए। स्पाउस के बेस पे जहाँ मर्जी चले जाओ। तो ये वाले कोर्स में सबसे ज्यादा लेडीज जाती हैं, बट द ओनली कैच इज 7 बैंड ईच। चाहिए। सब में, चारों में 7 बैंड ईच होनी चाहिए, या पीटी में 65 ईच होनी चाहिए। अगर ये है, दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम टू गेट पीआर इन न्यूजीलैंड। तो कनाडा में जैसे सिर्फ मास्टर्स 2 साल की चाहिए स्पाउस वीजा के लिए, इसमें लेवल 7 भी ले सकते हैं, लेवल 8 भी ले सकते हाँ, अर्ली चाइल्डहुड में ये है। तो जितने भी ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेज हैं उसमें स्पाउस अनलिमिटेड जा सकता है, बट मास्टर्स कोई भी हो। हैं। मास्टर्स कोई भी, अदरवाइज ग्रीन लिस्ट में हाँ लेवल 7 ग्रेजुएट हाँ, भी उठा लेंगे। उसमें जा सकते हो। उसमें भी उठा लेंगे। बट उसमें कैच सिर्फ यही आता है कि जो स्टूडेंट है उसको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलता, उसको क्लोज्ड वर्क परमिट मिलता है। मींस कि वो जो पढ़ाई कर रहा है उसी से रिलेवेंट जॉब होनी चाहिए। तो ये ग्रीन लिस्ट में जा रहे हैं तो हाँ, ग्रीन लिस्ट से लिंक्ड ही। प्रोफेशन तो में ये ही काम कर सकते प्रोफेशन स्पेसिफिक हैं। हाँ, क्लोज्ड वर्क परमिट है, बिल्कुल। ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं, नहीं है। नहीं नहीं, कंपनी नहीं है, प्रोफेशन प्रोफेशन। हाँ स्पेसिफिक है। हाँ। तो थोड़ी बट रिस्ट्रिक्शन ये है। लेवल 7 में ही है, बट जैसे ही आप लेवल 9 पे आ जाते हो तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मास्टर्स अगर ले तो मास्टर फिर सबसे तो सेफेस्ट प्रॉपर। है। हाँ, मास्टर सबसे सेफेस्ट है। बट अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रेजुएट ये डिप्लोमा है, फैसिलिटी है ऑनलाइन वाली। ऑनलाइन वाली। ये हाँ एक मजेदार हाँ चीज है हाँ हाँ, कि जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, कॉस्ट ये सिर्फ सेविंग इसी इसमें। में ही है, एनजेडटीसी
और अर्ली चाइल्डहुड के ही प्रोग्राम में, और कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। स्पेसिफिक हाँ। नॉलेज है। दूसरा एक और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, वो है मास्टर्स विद रिसर्च। उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो विद मास्टर्स। बट इसमें एडमिशन क्वेश्चन मार्क होगा। वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजेस में नहीं है। तो वी हैव गॉट 3 प्रोग्राम्स। एक है मास्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस विच इज फॉर एचआर और एडमिन वाले। ठीक। एक है मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर्स, जो भी एआई पढ़ना चाहता है उसके लिए, रिसर्च रिलेटेड है ये भी। रिसर्च। और तीसरा है मास्टर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, तो जो अर्ली चाइल्डहुड में फिट नहीं हो रहा बट उसको रिसर्च बेस्ड मास्टर्स में जाना है, स्पाउस को लेके जाना है, फुल टाइम काम करना एक है। साल है, 2 साल के प्रोग्राम? ये सब 16 से 16। 14 से 16 महीने के। ठीक और इन तीनों ही प्रोग्राम में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, फुल टाइम स्टडी कर सकते हो। और रिसर्च में इसको 3 पार्ट में ब्रेक डाउन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च प्रपोजल पहले देना है, है। ऐसा नहीं है। कोर्स वर्क करके फिर थोड़ा रिसर्च लास्ट में करना, हाँ, जैसे अपने यहाँ एमटेक होती है, बिल्कुल सेम, लास्ट में जाके थोड़ी सी काइंड रिसर्च ऑफ डिसर्टेशन। डिजर्टेशन हाँ, देनी होती है तो थोड़ा। पहले 14 हफ्ते उसमें आप पढ़ोगे। 3-4 महीने हाँ, शायद फिर एक आप सेमेस्टर। 3-4 महीने प्रपोजल बनाओगे कि अब मैं ठीक रिसर्च है। इस पे करूंगा। सही है। और फिर अगले 6 महीने में एक्चुअली में रिसर्च रिसर्च करके कंप्लीट देना है। अपना सिमुलेशन। महीने में एक दिन जाना है क्लास। ठीक है। महीने में एक दिन क्लास जाना है। कोर्स वर्क भी इसका इजी होगा। वो भी ऑनलाइन है, वो भी इजी ऑनलाइन ऑनलाइन है। है। तो यहाँ पे वो बच्चे जाएंगे जो दिमाग से तो जिनका बल्ब ऑन है, लेकिन वो साथ के साथ फुल टाइम काम करना चाहते हैं। ठीक है और इसमें सर। 25% स्कॉलरशिप भी है। तो फीस कितनी पड़ जाती है टोटल प्रोग्राम की इसकी? तो अगर आपने टाइमली अप्लाई किया तो यू गेट स्ट्रेट 25% स्कॉलरशिप। तो 22 लाख इसकी फीस है, जिसमें से 25% कम हो जाएगा, तो वही 15-16 लाख रुपए आ गए। टोटल फीस होगी। हम्म। अगर आपने वो डेडलाइन मिस कर दी तो आपको मिलेगी अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप, जो कि 15% और 10% आती है। ठीक है। तो बिल्कुल एकदम नजदीक हो तो 10% आएगी, अगर थोड़ा टाइम है तो 15, और ज्यादा टाइम है तो 25। इस तरीके से है। तो टाइमली अप्लाई करोगे तो आपका भी वीजा आएगा, तो स्पाउस का इसमें भी। थोड़ा लेट वाली ले लेते हैं हाँ, वो तो फिर। अप्रैल है अब नेक्स्ट। अच्छा तो अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है, अगले 1-2 महीने में अगर आप 6.5 बैंड लाओ, एप्लीकेशन लगाओ, अपनी स्कॉलरशिप का लेटर ले लो, रख लो। पे नहीं करना आपको कुछ भी किसी को। ठीक है। स्कॉलरशिप का लेटर ले लो, क्योंकि उससे आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कम हो जाएगी, इमिग्रेशन में काम आएगा कम फंड दिखाने के। फिर आप अपना फंड्स रेडी करो। कुछ सीट्स की भी रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें? हाँ, 25 बच्चे 25 ही है बस? बस। मैं भर गए तो बस। ये इस कॉलेज में है। अब ये हम्म। अब ये मान एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ मान लो ऑफर लेटर आ गए जी। बहुत सारे बच्चों के, वो कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है, कैसे जा रहे ये इसका कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, इसके लिए हम क्योंकि ऑथराइज एजेंट्स हैं, तो हमें रेगुलर अपडेट्स आती है कि कितनी सीट्स बची हैं, कितनी नहीं बची है, कितने जैसे लेट्स सपोज मैंने 20 एप्लीकेशन लगा दी, हम्म, अब 20 के 20 तो जाएंगे नहीं। ठीक है। ऐसे ही किसी और एजेंट ने 20 लगा दी, तो उनके पास जो 25 सीट हैं वो मैक्सिमम ऑफर जो देंगे वो 200 बच्चों को देंगे। ठीक है, इससे ज्यादा ऑफर नहीं देंगे। आइडिया है उनको कि कितने इसमें से बच्चे में कन्वर्जन उतना आ जाएगा, ठीक तो है। वो 200 को ही देंगे। तो इसलिए उन्होंने ये 6 महीने की विंडो रखी है कि 6 महीने पहले अप्लाई करो। अगर मान लो किसी का वीजा आ जाए हाँ, और जाना हो उसको बाद में, तो उसको फिर डेफर हो जाएगा। डेफर हो जाएगा? हाँ, ये डेट यहाँ पे कितनी? न्यूजीलैंड में डेफरमेंट इतना आसान है कि अभी मैं बताता हूँ, एक लड़की है, उसका ना डिवोर्स केस चल रहा है, और उसको वीजा ले लिया हमने। अब वो कह रही है कि मैं अभी नहीं जा सकती। तो मैंने उसको बोला कि तू बता कब तक तेरा जाने का प्लान बनेगा। से- तो उसने कहा कि मैं फरवरी में जाऊंगी। तो हमने फरवरी का ऑफर मंगाया, इमिग्रेशन को भेजा कि सिंस हर चाइल्ड इज ओनली 1.5 years, she feels that once he crossed 2 years, she will be able to manage her kids in a better manner. So please grant the visa for February. ठीक है। And they did that. उसको वीजा जो है फरवरी का आ गया, तो खत्म होगी बात, तो अपना भी काम हो गया उसका। कनाडा में भी वही सेम ही है कि वी कैन डू एनी नंबर ऑफ डेफरमेंट्स। अभी रिसेंटली कोई क्लाइंट था, वो उसको जॉब का इशू हो रहा था कि हाँ वो कंपनी रिलीज नहीं कर रही थी। हाँ तो वो गया वीजा जब 4 मंथ्स का पेंडिंग था तब। हाँ 4 मंथ का सिर्फ लास्ट में बफर पीरियड होता है, आइडियली तो उसका प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए था हाँ, 4 महीने बिल्कुल में। बिल्कुल, हाँ। वो गया जब प्रोग्राम खत्म होने का टाइम आ गया, फिर हाँ। उसका एक्सटेंशन करवाया वहां पे पूरा। हम्म। लेकिन अगर 4 मंथ से ज्यादा का डेफरमेंट लेते हैं हाँ तो फिर कनाडा रीओपन करके एप्लीकेशन दोबारा वीजा ग्रांट कर देता है। हाँ और अगर हम
8 मंथ्स का डेफरमेंट वाला हाँ कोई ऑफर लेटर सबमिट करते हैं तो दोबारा से वीजा ऑटोमेटिकली आ जाता है हाँ कि वी हैव डेफर्ड फॉर मोर देन 4 मंथ्स, हम्म मोर देन 150 डेज, हाँ तो वीजा ही दोबारा आ जाता है हम्म स्टैम्प होके। हम्म सो सेम, हाँ उसमें न्यूजीलैंड कोई में। कम्युनिकेशन नहीं है वो, हाँ वो सेल्फ करते हैं, यहाँ पर वीजा ऑफिसर को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सरकमस्टेंसेस बेस्ड बहुत कुछ है। बट हो जाता है हाँ सॉर्ट ऑफ। अब मैं एक और बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज किसी बच्चे ने बैचलर्स ही नहीं करी ठीक है, और उसके बाद 5 साल का एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्ट मास्टर्स के लिए जा सकता है। बैच 12th के बाद। हाँ गॉट तो इट। जो जिसके पास गैप है और उसने 12th के बाद कुछ नहीं किया बट इंग्लिश अच्छी है, इंटरव्यू वो कर सकता है क्रैक, क्योंकि कॉलेज ऑब्वियसली इंटरव्यू लेगा आपसे, ऐसे ही नहीं दे देगा। आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको डायरेक्ट मास्टर्स का वो ऑफर देंगे। ये कनाडा में मैंने कहीं किसी यूनिवर्सिटी में सुना नहीं, यूके में मैंने सुना है, हाँ गया नहीं अभी तक, हाँ बट आई हैव हर्ड दैट 12th के बाद एक्सपीरियंस है तो दे कैन अलाउ यू टू टेक मास्टर्स। हम्म, कनाडा में मैंने ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक देखा नहीं है। हाँ न्यूजीलैंड में ये कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। एक ऑप्शन जो थोड़ा सा सिमिलर होगा हाँ कि आपने 12th प्लस डिप्लोमा किया है हाँ 2 साल का या 3 साल का, उसके बाद सीधा पीजी डिप्लोमा ले सकते हैं। हाँ दिस इज द बेस्ट आई हैव हर्ड। नहीं न्यूजीलैंड में ये बहुत बढ़िया है। और कभी कभी ऐसा होता है, लेट्स सपोज किसी ने किया बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा बट उसने काम किया कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, एक है कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना, एक है एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन में ही काम करना है, लाइक यू आर वर्किंग एज एन प्रोजेक्ट मैनेज कर प्रोजेक्ट, रहे हाँ स्किल्ड, तो हैं उस बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है इन अ ग्रीन लिस्ट। जो ये कनाडा में नहीं नहीं होता। होता सो वो तो सिर्फ एजुकेशन को ही देखते हैं, हाँ बाकी आपने क्या किया वो आईआरसीसी को समझाओ वीजा के लिए, हमें एडमिशन के लिए मत समझाओ कि हाँ तुमने क्या एक्सपीरियंस लिया हाँ है। लेकिन यहाँ पे अगर कॉलेज ने आपको एडमिशन दे दिया तो आप अगर अपनी एसओपी अच्छे से लिखोगे तो आपको वीजा जरूर आएगा यहाँ पे, क्योंकि इतने फिल्ट्रेशन ऑलरेडी है कि अगर आप वीजा स्टेज तक पहुंचे हो तो आप में आपकी फाइल में कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी दम है। फंड फंड भी मांग लेती है, नहीं पहले कुछ नहीं मांगती। तो ये तो फिल्ट्रेशन हमें खुद ही करना हाँ, पड़ेगा। ये काउंसलर की ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसलर। कि आप बच्चे से पूरे उसके फाइनेंशियल्स, आईटीआर, उसकी सोर्स ऑफ इनकम, उसके प्रॉपर डॉक, अब बहुत सारे हरियाणा पंजाब में एमएसएमई चलता है वहाँ पे, हर मतलब वीजा फाइल लगानी है एमएसएमई बनवा लो, वो जैसे ही एमएसएमई देखते हैं तुरंत वीजा आउट, क्योंकि रीसेंट है वो, उसमें कुछ नहीं चाहिए, एक आधार कार्ड पे एमएसएमई बन जाता है, वो भी ऑनलाइन आधे घंटे में। आधे घंटे में। तो वो कोई बिजनेस का सॉलिड प्रूफ नहीं है ना, जब तक आपके पास वो बिजनेस का सॉलिड प्रूफ नहीं है तब तक वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो जितनी कढ़ाई बुनाई वाली आंटियां हैं, जितनी बुटीक है, बुटीक है, जितने भी डेयरी वाले हैं, पार्लर, ये सब वो हैं, क्या बोलते हैं, वो इमिग्रेशन देखते ही वो ये 50% जिनके वीजा नहीं आ रहे ये वही फाइल से वही हैं। है। तो हम पहले से आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चलेगा ये नहीं चलेगा, ये चलेगा ये नहीं चलेगा। मतलब आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमारा जो 80% टाइम है ना वो बच्चों को ना करने में जाता है फिल्ट्रेशन। रादर देन उनकी फाइल पे काम करने के लिए। तो 5-6 लोग सिर्फ डेडिकेटेडली इसलिए हैं कि वो सिर्फ फिल्ट्रेशन करेंगे कि फंड्स, इनका वीजा आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। मेजर तो फंड्स का ही है, बाकी फर्म्स, बैकग्राउंड। वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उस क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आल्सो प्लेज रोल। कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेडशीट पे डिग्री रखते हैं, फोटो खींच के भेज देते हैं कि ऑफर अप्लाई कर दो। मैं उनको वही मना कर देता हूँ, भाई पहले जा पेन ले थोड़ा सा, दुकान पे जा, इसको प्रॉपरली स्कैन करा के आ, क्योंकि अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। वीजा ऑफिसर के सामने, कॉलेज के सामने जब आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो किस क्वालिटी में जा रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। मेरी बहुत क्लाइंट्स के साथ इस बात पे लड़ाई हो जाती है डॉक्यूमेंट्स पे, मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर बहुत सारी, कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपके लिए है, हाँ आपके फाइल के लिए। रिफ्यूजल आया, चल कंसल्टेंट का तो एक केस खराब हो गया, हाँ मैं कह रिफ्यूजल तो आपकी फाइल पे धब्बा टंगे तो है। आपके पासपोर्ट पे है, उसका क्या जा रहा है। लोग समझते नहीं है, ये सीए रिपोर्ट क्यों बनवा हाँ। रहे हो, इसके 2500-3000 रुपए लगेंगे, ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट की क्या जरूरत है। मैंने फिर एक वीडियो बनाई रिसेंटली जिसके जी अंदर यहाँ के केप्स नोट्स जो होते हैं, हाँ केप्स नोट्स में ये लिखा आता है कि रिफ्यूजल का एक्चुअल रीजन क्या है। जी उस इंडिया में जैसे आरटीआई होती है, वहां हाँ पे इमिग्रेशन के लिए केप्स नोट्स या जीसीएमएस नोट्स होते हैं। न्यूजीलैंड में एएमएस बोलते हैं इसको। एएमएस वहां पे हाँ भी एमएस भी बोलते हैं हाँ उसको, हाँ बट फेमस नेम उसका हाँ जीसीएमएस केप्स या केप्स नोट्स। हाँ तो निकाल के इंडिया वाले कैप्स नोट्स बिल्कुल गार्बेज होते हैं, हाँ क्योंकि कॉपी पेस्ट गलत चीजें भी लिखी होती है उसके हाँ अंदर, और उसके बेस पे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। हम्म, लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, हाँ नहीं सर लिख के आया, रिफ्यूजल लेटर में लिख के आया, हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, भाई गार्बेज है, हम्म इसके बेस पे कुछ कंक्लूड मत करो, ना ही रिफ्यूजल लेटर के बेस पे। हम्म रिफ्यूजल लेटर में तो दो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट 2-3 लाइनें हम्म, सबके में चिपकी आएंगी, मैं कहा भाई इससे कुछ। न्यूजीलैंड नहीं करता ऐसा, वो प्रॉपर रीजन देता है कि यूके भी प्रॉपर देता है। हाँ
कनाडा में स्टैंडर्ड है, और केप्स नोट्स तो आप पढ़ लोगे, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। सेम चीज। मैं देर इज वेरी हिलेरियस इंसिडेंट केस था हमारे साथ चलते हुए, अश्वथी का केस था। जी। रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हाँ कनाडा की, बड़ी मुश्किल से एडमिशन एडमिशन हुआ मास्टर डिग्री के अंदर। हाँ तब तो मास्टर लेना मैंडेटरी भी नहीं था, हाँ वो पहले कोनेस्टोगा में थी, और हाँ उसके रिफ्यूजल आ गए, स्पाउस का केस था। हाँ गो फॉर मास्टर डिग्री, तेरे हाँ को एलिजिबिलिटी है। हाँ उसने शायद 6 बार ड्यूलिंगो दिया टू गेट एडमिशन इन आरआरयू। हाँ आरआरयू में फाइल लगाई, हाँ रिफ्यूज हो गई, हाँ उसने कैप्स नोट्स अप्लाई कर दिया। तब तक हम दोबारा वीजा अप्लाई कर चुके थे। हाँ एक दिन कैप्स नोट्स आए और हम कैप्स नोट्स पढ़ रहे हैं। हाँ कैप्स नोट्स के अंदर लिखा है, व्हाई डिड यू टेक दिस प्रोग्राम इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू। हाँ। अगले दिन वीजा आ गया। एंड वो भी हस्बैंड जो है संदीप, हाँ अश्वती के, हाँ ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर विक्टोरिया में रहा तो हम मिले भी, हाँ संदीप के साथ मिला भी। हाँ सो इट वाज सो हिलेरियस फॉर अस कि एक दिन बैठ के मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, डोंट वरी यार, मैंने ग्लोबल मैनेजमेंट तो किसी बैकग्राउंड, ग्लोबल हाँ मैनेजमेंट हाँ, प्रोग्राम किसी भी है बैकग्राउंड के तो साथ। किसी बैकग्राउंड ले, आप कुछ हाँ मर्जी बैकग्राउंड, हाँ मैं वीजा लेके दिखाऊंगा तुझे ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ, हाँ क्योंकि अपने यहाँ होता नहीं है। मैं हाँ तो एमबीए वाला लिया, मैं उसका भी वीजा ले लूंगा इसके हाँ अंदर। हाँ दिस इज नॉट ए रिपीटेड स्टडी, हाँ यूनिक टाइप का प्रोग्राम है। हाँ रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी वन ऑफ द रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी, हाँ पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो, हाँ क्वेश्चन ही नहीं हो सकता इसके हाँ अंदर। मैं कहा तेरा वीजा आएगा, रिफ्यूजल आ गया ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है तेरा वीजा ले लूंगा मैं, चाहे 10 बार फाइल लगानी पड़े, तो हाँ टेंशन मत हटियो। हम्म, मेहनत तुमने कर ली, 6 बार तो उसने डीलिंग को दे दिया, हाँ मैडम ने। हाँ तो मैंने कहा तेरा वीजा आएगा, हाँ टेंशन मत ले। एक दिन मैं उसको कैप्स नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। कि भाई ये जेनरिक है, टेंशन मत ले, इंडिया के कैप्स नोट्स है, ये यूएई के कैप्स नोट नहीं है। हाँ तो एक दिन तो मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगले दिन उसका वीजा आ गया। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा देख मैंने तेरे को बोला था। सो ट्रस्ट बढ़ता है इससे। हाँ तो मैंने जो कैप्स नोट्स थे, जो कैप्स नोट्स होते हैं एक्चुअल कैप्स नोट्स, यूएई में जो कैप्स नोट्स बनते हैं, हाँ अबू धाबी में जो कैप्स नोट्स बनते हैं, अच्छा उसमें लिखा होता है प्रिसाइज। उनका रिफ्यूजल लेटर तो वो भी ऐसे ही होता है, हाँ टेम्पलेट सेम हाँ टेम्पलेट कॉपी पेस्ट। हाँ लेकिन उनके जो कैप्स नोट्स होते हैं ना, मैंने जो सीखा है कैनेडियन इमिग्रेशन एसओपी लिखने के बारे में, हाँ मैं 2000 से 3000 ऊपर एसओपी लिख सकता हूँ सारे टोटल मिला के। हाँ मैंने कैप्स नोट्स जो यूएई आबू धाबी के थे ना, मैंने हाँ उन्हीं से सीखा है। अच्छा क्योंकि उसके अंदर जो लिखा होता है ना, वो हाँ ये भी बता देता है भाई तूने ना ये कागज नहीं लगाया, ओ तेरी सैलरी इतने $1000 बनती है, तू हाँ सरवाइव कैसे करेगा। हाँ दिस इज नॉट सफिशिएंट। तू हाँ यूएई में रह रहा है 6 साल से, हाँ और तेरी होम कंट्री का लिंक नहीं है कोई, हाँ, छह क्योंकि साल से रह इंडियन है अगर वहाँ पे। और हाँ तू यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी ले ही नहीं सकता। हाँ तो तेरा ना करंट कंट्री में कोई लिंक है, हाँ ना तेरा होम कंट्री में लिंक है, तो वापस कैसे, कहाँ हाँ जाएगा और क्यों हाँ जाएगा। हाँ तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ उसी के कैप्स नोट्स में लिखा हुआ था, ये तूने ना डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, हाँ, तूने सीए रिपोर्ट के अंदर तो दिखा दी मेरी लेकिन प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ प्रॉपर्टी है? के डॉक्यूमेंट कहाँ है, हाँ या प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहाँ है। हाँ दीज आर मेड ऑफ पेज डॉक्यूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिखा हुआ था हाँ प्रॉपर वर्ड। हाँ तो मैंने वीडियो बनाया, मैंने दिखाया, हाँ तो क्या देखो यार, तुमसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं या बनवाते हैं ना, ये देखो ये हाँ लिखा है इसके अंदर। हाँ भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है, तुम्हारी ही फाइल के लिए है। हाँ तो तुम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फाइल के ऊपर, हाँ तुम्हें ये 7,000 10,000 रुपए के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो रही है 25 लाख रुपए की फाइल को जो वर्थ बना देंगे। तो हाँ। लोगों से बहुत बहस होती है इस चीज के ऊपर, क्यों लगा रहे हो, मेरे को तो कुछ नहीं बोलते। अभी यही सेम केस अभी एक फाइल में हमने उसको मना किया कि हम आपका वीज़ा फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो कह रही है कि मैं ना डेटा साइंस का काम करती हूँ, डेटा साइंस पढ़ने जा रही है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, कि कहाँ काम करने जा रही हो, कहाँ काम करती हो। तो उसने मुझे एक पेपर ला के दिया, hyundai की जो ये है, ये होती है डीलरशिप, कह रही मैं उनके लिए डेटा साइंस का काम करती हूँ। एक पेज का पेपर लाके। मैंने कहा तो पेमेंट सिनेरियो क्या है? कह रही वो मुझे 3 लाख रुपए कैश देते हैं। मैंने कहा तो ये न्यूजीलैंड में तुम्हें कैसे जस्टिफाई करूंगा कि तो 3 साल से यहाँ पे काम कर रही है डेटा साइंस, कार डीलरशिप में डेटा साइंस का क्या काम है, तू कौन सा डेटा एनालाइज कर रही है। तो वो मेड अप डॉक्यूमेंट था। व्हेन वी आस्क्ड 4-5 क्वेश्चन, तो वो हमने हमें अक्यूज करने लग गया कि आप इतने डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हो, इतने तो कोई नहीं मांगता। मैं भाई मैं नहीं मांग रहा, ये इमिग्रेशन को देना है। काम बढ़ता है, हाँ हमारे लिए तो हेडेक है। बिल्कुल मेरे लिए तो 2 टीम मेंबर सिर्फ इसलिए हैं भाई, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए बिल्कुल। फाइल्स के अंदर, हाँ, हमारा तो काम बढ़ता है। क्योंकि उससे अगर यही होता, वो कहीं टीसीएस में जॉब कर रही होती, उसके बाद सैलरी स्लिप भी होती, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी होता, बैंक स्टेटमेंट भी होती, फॉर्म 16 भी होता, उसे लिस्ट देती, वो ऐसे जाती, 5 क्लिक करती अपनी ईमेल्स में, सारे निकालती, इधर व्हाट्सएप पे फेंक देती। क्योंकि उसके बाद नहीं थे, और अब वीजा फाइलिंग के टाइम आ गया और हमने मांगे, तो शी गॉट इरिटेटेड
तो भाई ये इरिटेशन तो आपको खुद सोचनी है ना। अब फिर मैंने ये वीडियो में बोला कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं ये आप ही के बेनिफिट के लिए मांग रहे हैं ना, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी है इसमें कि हम तो चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट ना लगाना पड़े। हमें तो वीजा ऐसे ही आ जाए, ऐसे पासपोर्ट दो इमिग्रेशन का और वीजा ले लो, तो हमारे लिए तो बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन सम पीपल दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। चलो बहुत बढ़िया, आपसे बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ आपके वर्ड्स फाइनली आप कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस से? मेरा तो स्टार्टिंग से रहा है, कंट्रीज वही जहाँ स्पाउस वीजा लगता है। सही है। न्यूजीलैंड वाज समथिंग आई टारगेटेड फॉर लास्ट 1 ईयर। हम्म। और और भी कंट्रीज, हाँ यूके में जो कोई नहीं करता है, मास्टर ऑफ रिसर्च के साथ स्पाउस वीजा ले सकता है, हाँ हाँ क्योंकि रिसर्च बैकग्राउंड रही है, मैं तो हाँ। पीएचडी तक गया। जी। तो आई फील कि दिस इज समथिंग आई कैन डू। मुझे बिल्कुल। रिसर्च प्रपोजल भी बनाने हैं, तो आई एम हाँ। रेडी फॉर दैट। जी। तो आई एम टारगेटिंग दैट एज वेल। हम्म। न्यूजीलैंड वाज ऑलवेज इन माय लिस्ट। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यूजीलैंड में स्पाउस वीजा। मोस्टली चीज़ें कनाडा के जैसी है, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें एडमिशंस हाँ। वीजा एप्लीकेशन में अलग, थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल। फिनलैंड हैप्पीली डूइंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिस कंट्री में स्पाउस वीजा हो सकता है, मेरी फेवरेट कंट्रीज रहती है मेरी हमेशा। भी मेरी भी बढ़िया रहती है, क्योंकि वो जो आपने सेपरेशन वाला पॉइंट बोला वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अभी मतलब हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं, तो यही एक साल था जिसमें मैं 1 महीने के लिए अकेला न्यूजीलैंड गया। और वो काम के वाइज तो चलो ठीक था, लेकिन पर्सनली इट वाज लाइक बेटा फोन कर रहा है, पापा आई मिस यू, तो बहुत मैं तो ज्यादा। कोविड में कनाडा में फंस गया था। तो मैंने तो वो टाइम देखा है, रो रो के हर रोज जी। जब भी बच्चे बोलते थे, तो इट वाज रियली हाँ। ट्रॉमेटिक। तो जहाँ भी स्पाउस है वहाँ तो बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। और बाकी कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो लिखना। इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, वो भी आपको आपको टाइटल में ही मिल जाएगा। और आपको कनाडा जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, इनका जो ब्रांच है वो भी, इसके बारे में भी थोड़ा आप बता दो कहाँ पर So है। head office is in Panipat, and we have recently opened in UAE as well. शारजा में we have registered the company. तो दो जगह तो है ही अभी। बहुत बढ़िया। And, तो जो भी हरियाणा वाले बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको आपके पास में जाकर अपनी फाइल को प्रोसेस कराना है तो आप जितेंद्र जी के ऑफिस में जा सकते हो। वहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मुझसे कनेक्ट करना है तो आपको पता ही है, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उसको आप क्लिक करो एंड गेट इन टच विद अस। एंड रेस्ट, whatever your questions and query are, do write it in the comment section or connect with us. We'll be more than happy to help. thank you so much everyone and for this session. Thank you so much if you have watched it till the end. And thank you Chakit for giving me this opportunity. And he has been a YouTuber for long, specifically for New Zealand. I have done it for Canada in past few years. तो बहुत अच्छा लगता है connecting like this. Perfect. Thank you so much. चलो, टेक केयर, बाय।